Good morning, sir. Good morning. So, what is the task for today? We are going to do what? Full-fledged NPV, right? Today task is full-fledged NPV, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Badhiya. We'll complete that today itself. Let me message in the group that we are starting. Sunday ko. I have called you in the morning. So today I think we are going to do NPV, right? The NPV that is there. Probably one or two questions you will be able to 100% solve on that, right? Before we even start, right? How should we do it in the week is my question. In the week, how to do it? Bolo. So can we do like after 9 p.m.? After 9 p.m. Okay. ठीक है. Let वो me. बेस्ट रहता है. But then it will be 10 to 11. Will it be okay with you? Sir, that works. Just after 9, if possible. Everybody. Bolo. Yes, sir. Jia, what do you say? Yes, sir. Okay. चल बढ़िया. ठीक है. Then we'll do Wednesday, Thursday, and Friday. 3 days can we do? Arvind, what do you say? No problem. Okay. Right, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, Yes, those are sir. basically, we'll do the three parts that are remaining. What are the three parts that are there? I have left from this, right? One is sensitivity analysis. Second is your what? Tell me. Linear Sensitivity. programming. Return on investment. Your what? ROC, payback and that discount wala part, right? And last एक कौन सा था? One more part we did, no? And last is LPP, जो what she said was LPP, right? Okay, so quickly let's start. Wait a second. Do I have the notes ready with me? Yes, notes are ready. Sure. Just a second. हाँ, चल. तो एक मिनट. Am I audible, visible now? Tell me. Yes. Yes, sir. Yes. Is the screen visible? This is what we did yesterday before you understood this profitability versus cash flow approach, right? इसमें कोई problem? Any problem in this profitability versus cash flow approach? No, sir. Recording in progress. So very good morning to everybody. Quickly join in, right? Quickly, so that we can start. I just want to ponder upon this profit versus cash flow approach, right? Tell me, do you have this NPV ka sheet? I'll open up Excel. Did you go through both the formats? Tell me. Did you go through both the formats? I told Yes, you to sir. do it in homework, right? Did you go through the format? Was the format okay with you? Direct format. Now, can you tell me
See this format that I have drawn, cash flow approach. Now see, first let's be very clear. Okay. In NPV, do we use cash flow approach or do we use profitability approach? ये रोहित क्या हुआ रे? Your camera is freeze क्या? हाँ नहीं. Okay. Cash Lag flow हो रहा है approach. थोड़ा. Okay. Cash flow approach, right? We have the cash flow approach for NPV. First, let me be very clear. Do you have a cash flow approach or do you have a profitability approach? As in, एक minute. Don't jump to the answer. What do you discount at the end and how do you get the net present value? Would you say that it is based on cash flows or would you say it is based on profit? Tell me. Profit. Profit you discount and Yeah. get NPV. नहीं No, sir, सर, cash तो flows. ये cash flow. Cash flow. I hope everybody is okay with what? Cash flow approach. What do we discount? Cash flows. So you can say we could use whatever approach we want, but at the end, what should we get? Tell me. Can I say this is cash flow in hand after what, or this is cash flow attributable to equity shareholders, right? After paying equity dividend, this is cash flow in hand of the company or net cash flow, whatever you want to say. But tell me, whenever you do this NPV ka working, why is this interest, preference dividend, equity dividend, correct, not deducted from year? The discounting factor में आ गया वो. It is included through the discounting factor, correct? So what we do, whatever things we are not using, correct, that means interest. So I did here interest, depreciation. Why do we not take? Tell me. Because it is non-cash expense. So keep in your mind cash flow approach, right? So depreciation. But do you take tax shield on tax allowable depreciation? Yes, sir. Because Yes, it sir. saves tax for you, right? Okay. So if I have to say that, sir, as per above format, why am I not doing all the workings? Hear me out. Why am I not doing all the workings? Because of this, or using this full cash flow approach. This is good for year on year evaluation. Yesterday we were doing this, just revising it. We can do year on year evaluation, correct? But you do two rooms. दो room करने का. One room is what? Tell me. Of what? All the finance givers, and the other is operating. Finance giver gives you initial investment, operating gives you all the operating cash flows, correct? Both the things meeting, then these finance givers, right, tell you, boss, what will we get out of it, right? What is the cost? This is the return that we require. One more thing that I want to make very clear. See, if you have taken money from someone, I take money from you. Example, you charge 10% interest to me. How much? 10% interest to me. For you, 10% is return. For me, 10% is what? I took loan from you. I am paying 10% interest. For you, it is return. For me, it is cost. Tell me, if I tell you, no, 10% nahi ho paega, only 8% I will give you. Will you borrow money to me? No. Why? Sir, return expected from shareholder or from finance holder should be equal to cost to company. If there is a mismatch here, will it work out? Tell me. I say 8%, you say no, 10%. You are like, no, then I don't want to give the loan. I'll go home. ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है. Has happened, will happen. बराबर है क्या? देख लो. कोई टेंशन? Any problem? Sinchana, what do you say? So I am trying to say that this kind of what? I have some notes written. Do these notes make any logic? Have a look. Read it for me. Wait, let me paste it here. Certain notes. Aja zara, you also need to copy it. Aja. But when you want to evaluate a future new proposed project, you will use what?
a stream of cash flows, expected cash flows for n number of years, plus investment required today, generally at 0 year or later if required, and use what? Bolo? Weighted average cost of capital. Use what? Weighted average cost of capital. Have a look. Use the weighted average cost of capital or WACC of the project for discounting the net cash flows, which gives the NPV, and accordingly you decide whether to accept or reject the project. Okay, क्या देखो जरा. We have done WACC also. Read this. WACC has both cost of debt and cost of equity and preference share included in it. Consider the payment to all the capital providers. Or sir, why are you writing so much in detail? Because when you read it, see, a lot of students I have seen over the years, okay, don't know the logic of NPV at all. Don't know why we are doing this and why weighted average cost of capital is the discounting rate, right? Then, so any amount paid to capital providers is not included in the cash flow analysis for future projects, and hence we come to the NPV format given in Excel, where interest and dividend is never included, but initial investment and scrap value is included, and working capital investment is included. Okay, kya? Please write it down. I have taken best of my abilities. मैंने आपको समझाया है, right? Have a look whether does this make sense. Now is it formulating in your brain कि sir profit approach या cash flow approach क्यों use नहीं करते, and why we are using the NPV approach or NPV what table. I'll give you 2 minutes. Copy this down. Copy it आराम से. I'm not going to rush it, ठीक है, because now I have to go ahead, correct? So without this understanding being there in your brain, till then I'll get certain more notes that I want. आप तब तक ये करो. I hope the screen is visible. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, now it is showing black, sir. Black screen. Sir, हाँ, that's what I was asking. सर पॉज हो गया स्क्रीन पे. Just हाँ now. हाँ, okay. अब दिख रहा है. Now it's back. I have got this last year saying the relevant cash flow sheet ahead. I've got this sheet pasted here. हाँ, preference shares are considered generally debt for the capital structure theory. Going ahead. But first, have you understood it? Then only write it up, please. If you have understood it, try to visualize that boss sir did that cash flow approach, but that did not work out well. Why did it not work out well? And why are we using that cash flow approach? Say we are going for NPV analysis, right? So we are eliminating dividend, interest and everything and taking initial investment, scrap value, working capital. This is how you should think about it, basically. तो आप एनपीवी अप्रोच ही बोल रहे हैं ना बेसिकली. हाँ, कैश फ्लो और प्रॉफिट अप्रोच तो यूज ही नहीं करना. वो भी it is a mix of all the approaches आएगा. सर तो अभी इनडायरेक्ट मेथड में है. Indirect method में it will come, right? But this has to be very clear for me to understand if a question comes up, whether it is direct approach, indirect approach, what approach to use. You have to be very clear. See, I promise you that you will get full clarity of whatever you are doing. In exam, any question comes up, your concepts will be very strong.
your practice will be very extensive. Okay, you need not worry about things. गुड मॉर्निंग मुस्तफा, कैसा है बेटा? गुड मॉर्निंग नेहल। कहाँ थी नेहल? कल नहीं आई? कल ऑफिस में थे सर, हाँ, सैटरडे ऑफिस मीटिंग में ऑफिस रहता तुम्हारा सैटरडे? ओके, नॉर्मली हाफ डे लेके रखा है, बट कल थोड़ा कुछ अर्जेंट मीटिंग था इसलिए हो नहीं पाया। काम का तो आई थिंक इंडिया में अपने इधर प्रॉब्लम ही है भाई, राइट? गेटिंग होम ऑन टाइम इज लाइक लिविंग अर्ली ना, है कि नहीं? क्या कश्मीर मैडम बराबर बोल रहा हूँ क्या? सर इतना ज्यादा हम लोगों को इश्यू नहीं होता, वर्क फ्रॉम होम है ना मेरा मैक्सिमम टाइम। वर्क फ्रॉम होम का ठीक है, वर्क फ्रॉम होम तो फिर 24 आवर चालू है तुम्हारा फिर। एग्जैक्टली। हमारा तो वी हैव टू हॉप, तो कॉलेज जाना पड़ता, ऑफिस जाना पड़ता, घर आके ऑनलाइन क्लास लेना पड़ता सर नहीं, इन अ बीच डे। बीच में ऑफिस जाना पड़ता है मुझे भी। हाँ, और मैं अपना वर्किंग स्पेस लेके रखी हूँ। अरे घर वाह, से बढ़िया। घर से बैठ के सर, एक ही जगह बैठ के काम भी करो पढ़ाई भी करो, सर दिमाग खराब हो जाएगा। बराबर है, गुड। New avenues have come up of work now. Relevant cash flows you don't need to write. Relevant cash flow का table है, just have a look at it. I'll go point by point of everything on everything. What things should not be included in the cash flow in NPV? Because this will not help you now. Anytime in the future you are doing any kind of cash flow analysis, certain cash flows cannot be included. If you are done writing, tell me. Today who's not come up, right? Purvi has not come up. Jia is there. Arshita is there. Itmin is there. यहाँ है। और कौन नहीं है यार? सर मुस्तफा आजकल ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं आता है। नहीं आता इधर, नहीं आता, उसको पसंद नहीं ऑफलाइन। सर इसीलिए कैलकुलेटर में आंसर्स गलत नहीं आ रहे हैं। वो करता है क्या कैलकुलेटर मुस्तफा घर पे बैठ के? बस अब हाँ, हो गया ना ईद कल? डन? हुआ ना, इसके लिए तो कल लेट आया था। हाँ, मालूम है। हाँ, कल तू लेट आया था, राइट? डन एवरीथिंग अभी। यू आर ऑल्सो फास्टिंग और नो? या फास्टिंग ना, yesterday I was not fasting ना ईद का। ओके, चलो बढ़िया, ग्रेट। डन अभी। इसके बाद हेडिंग, आफ्टर दिस राइट अ हेडिंग रिलेवेंट कैश फ्लो एंड राइट रेफर नोट्स फॉर द टेबल। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्हाट, ऐसे इंपॉर्टेंट है। देर आर क्वेश्चंस वेयर इररिलेवेंट कैश फ्लोज आर टू बी इग्नोर्ड, राइट? बट उसको लिखने का जरूरत नहीं। अगर आपको लिखना है तो मैं 2 मिनट का टाइम दे दूंगा, आप लिख लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sinchana, are you able to understand what we did or no? Yes, sir. Got it? Why normal cash flow approach is not used and NPV approach? Difference between year on year cash flow approach and NPV approach for this also you write down. Preference share is generally for WSCC purposes is what? Going to go into debt and not into equity.
वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। चलो Yes, sir. आजा। एवरीवेयर डन? Yes. अरविंद डन बाबा? Yes, sir. So either Yes, I sir. can now write profit versus cash flow approach versus NPV approach. Okay. So you have all the understanding of what is to be done. Okay. Great. चलो डिस्काउंटिंग रेट फॉर एनपीवी, ठीक है यार, ठीक है वो दैट आल्सो वी हैव रिटन फॉर प्रेफरेंस। आ जाओ। नाउ रिलेवेंट कैश फ्लोज, व्हाट आर रिलेवेंट कैश फ्लोज? नाउ सी व्हेनेवर वी यूज कैश फ्लो फॉर एनपीवी, आईआरआर एंड पेबैक पीरियड, ये तीन के लिए कैश फ्लो यूज होते हैं। वी ऑलवेज यूज रिलेवेंट कैश फ्लो, राइट? दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द थ्री मेथड्स ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सॉरी आई मीन्स इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, राइट? सो इन दैट केस relevant cash flows are what? Cash flow that occur because project is run. Now see, a lot of time it may happen that other project ka cash flow is given in the question. AFM level pe it is not given. FM level pe also it is not given, right? In some MCQs at FM level it was given. But I am more interested in the right side. First let me do the right side, okay? Historic cash flow or sunk cost. Now see, in questions generally, now I can directly show you also in the questions. Wait. There is something called as initial feasible study. What is it called? Initial feasible study. Historic cost, sunk cost means what? Now see, there is a question, I think Chumara mein only it was there. There is a question of foreign NPV. Chumara. Read this red part. Should you consider this as a relevant cash flow? First thing that you have to be very clear, sir, in NPV approach, all the cash flows that we use, operating cash flows and all other cash flows that are there, they should be relevant cash flows. Now in the relevant cash flows, right, which are not considered as relevant cash flows? Read this red part. Tell me, what do you think about this? An expense which has already happened should never be included in the NPV analysis. Now see, your decision, see, I'll tell you, abhi koi decision lena hai, right? That let's say, sir, whether I should go ahead with the project or not go ahead with the project, right? I do some initial feasible study before starting the project. Financially, whether it is visible nahi, viable nahi, I go to the market, ask questions, or I hire someone to go in the market and ask questions whether this product is something that you require or not. बराबर है क्या? Whether this product is something that you require or not. Then that investigation team goes, they charge you certain money and they tell you that this product has some or the other what? Demand in the market, right? Then after that you start doing financial analysis, right? So whether what this initial investigation ka kharcha whatever you have done, right, or expense that whatever you have done, right, usko agar justify karna hai, right, so whether initial investigation is never going to help you make a financial decision. What am I saying? Initial investigation is never going to help you or support you. It may support you, but it will not guide you in making a decision. Financial decision at the end depends on what? Cash flows. So if I have done investigation, not done investigation, I have paid something to the investigation company, it will not affect my future decision of NPV, whether to go ahead with the project or not go ahead with the project. Hence, it is called an irrelevant cash flow for decision making. Read this line. Will this cash flow be included in the working or not be included? देखो, it is very easy to consider this as initial investment and take it in the question. बराबर बोल रहा हूँ क्या? Is it very easy Yes, sir. to पढ़ put के this वही up? लग रहा है. हाँ. So when you read it, but what you have to see, establish that Mahegam had appropriate manufacturing facilities. यानी क्या किया है? सर्वे किया है तुमने. क्या किया है? You've done a survey, boss. कश्मी मैडम बराबर है क्या? नेहल क्या लगता है? सर्वे का खर्चा, survey expenses should never be included. They are relevant. They are irrelevant cash flows. Historic cash flows, sunk cost, allocated fixed cost. Now see, here I give an example, allocated fixed cost, right? You have a main office. I generally give an example. FM level, I give an example of chai.
chai, or tea, right? Let's say there is a company which has 4 departments, A, B, C, D. Every department has 1,000 employees. Tea is served to all the employees, correct? Tea is served to all the employees. There are 4,000 employees. The bill for tea at the end comes $4,000. So logically, what you do, sir? $4,000. We have 4,000 employees. We have 4,000 employees, right? So $1 per employee of what? Hence, A is given 1,000 ka cost allocated to them from this 4,000. Because see, chai wala gives one bill only. He does not know A division, B division, C division, D division. वो तो एक ही बिल देगा कि सर ये लो 4,000 मेरा पैसा दे दो. Correct or not? Give me my money, right? So $1,000 is asked or allocated to each department. Now this D department guy comes up and says, sir मेरे यहाँ कोई चाय पीता ही नहीं. No one drinks tea, coffee, anything. All my 1,000 people don't drink tea, coffee. Then is it logical to allocate that $1,000 to that D department? So any allocated fixed cost, yet not asked in the AFM exam. Abhi bol raha hu, right? But you never know when this allocated fixed cost might come in a foreign NPV question or might come somewhere else, right? Then cost already incurred means what? I told you, initial investigation or something of like that. Non-cash expense, example, depreciation, so you already know we do not include it. Then committed costs. Committed costs. Committed means what? Rent or what? Electricity, which is already committed. You can do whatever you want. See, even if you make 1 unit or you make 10,000 unit or you make no unit at all, right? You close the production, right? Still, will the owner of the property say, Arey Baba, no, you are a good person, right? Please don't pay rent, right? Because you are not doing any production. Will he come and tell you that, Baba, don't pay rent? Tell me. He is never going to tell you that, huh? बोरिया बिस्तरा बांध दो घर जाओ, correct? That is the way to stop rent is what? Either give a notice that you are leaving, जा रहे हम घर, bye bye, right? But if you are at the property doing nothing, still you have to pay rent. Last but not the least, interest cost. Now I don't need to tell you why interest cost is not included in NPV analysis, right? I have already given ample what? सर इधर आप डिविडेंड भी लिख सकते हैं. Interest cost, dividend cost, any finance or payment to finance providers, correct? हाँ ये ठीक है. Right? Any payment to finance providers. Correct. Then whatever cash flows are going to be there, additional cash flows that you incur, some money that you incur for the project, cash flow will occur in the future, all the future cash flows, and opportunity cost. Opportunity cost has a lot of meaning when you are in FM, but now in AFM does not have a lot of importance. So I am not going to go into detail of opportunity costs. Correct? Okay. If okay, then let's go ahead. Relevant, irrelevant cash flows. I should consider only relevant cash flows and ignore irrelevant cash flows. See, in the examiner report, it was written a lot of students consider this as what? Initial investment. बहुत सारे बच्चों ने did what? Did a mistake here. इधर गलती होता ही है. It is an accident prone area. तुमने क्या पढ़ा? खाली क्या पढ़ा? I. इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या है? इज इट इनिशियल इन्वेस्टमेंट? हिस्टोरिक कॉस्ट. हाँ, लेकिन क्या है? और सर आया था वो, आपको मालूम नहीं है, मेरे को एक बच्चे ने बोला था तभी, राइट? अभी ये बीच में वापस रिपीट हुआ था ऐसा क्वेश्चन, तभी मेरे को बोला सर ये मैंने 2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिए थे क्वेश्चन में, मैंने दोनों लिखे, पूरे मार्क मिलेंगे ना? 0. बराबर है, क्योंकि देखो ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ है भाई? वेयर इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट? आ जाओ जरा. हाउ मच इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट? टेल मी. ये क्या है? क्लियरली सी द प्रॉब्लम. सी योर ब्रेन इज ओनली योर प्रॉब्लम इन द AFM एग्जाम.
Because what happens? No, your brain is in auto mode, right? You are not reading something and trying to interpret it. Your brain is like, मैंने सारा interpret कर लिया है, तू खाली लिखना शुरू कर. I have seen that with students. I'm not lying. They are so much in a hurry to complete the question, right? Patience is a virtue, which is what very difficult to have. ऐसा है. So have patience in the exam. Be a bit what? Patient, so that no tension comes up to you. Okay? चलो. Done. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. हाँ, एक मिनट. वी हैव डन द फुल फ्लेज एनपीवी का फॉर्मेट डायरेक्ट. हाँ, डिस्काउंटिंग रेट हो गया. चलो, इन्फ्लेशन सबसे पहले लिखो. इन्फ्लेशन चलो, write down heading inflation. Wait, I think I have the table ready. एक ही second. Just saving time. हाँ, बाकी कुछ नहीं. Write this down. Have a look. Sales variable cost and fixed cost plus inflation. Write down. 4 types of questions I have seen on inflation. 4 types of question. May it be NPV question, may it be APV question, may it be what? Tell me. Any kind of question which deals with inflation. इसके बाहर का मेरी गारंटी नहीं आता. My guarantee. All questions that are there in your syllabus, right? I have done a what? Summary of that. हाँ, all questions का one example we will do what? In Excel. चलो, you also open up your Excel. हाँ, करो करो करो. 2 मिनट और देते हैं, 1-2 मिनट. You also open up your Excel. अपन साथ में करेंगे, right? Sales variable cost and fixed cost plus inflation. First 0-year value given or current terms given plus inflation applied. Inflation applies from year 1 itself. First year value given plus inflation applied. Inflation applies from year 2. All year value given plus real terms value or current terms value. And expected or predicted or estimated cash flow or value given, that is already inflation adjusted.
Done, sir. Done. Everybody done? Sukmin, what do you say? Can we go ahead? Arvind? Done, sir. Done, sir. Last सबसे last. Okay, write down. Done. Okay, done. Sure. Then have a look. Inflation. Right? So the question goes something like this. Company A has following detail. Selling price today. Today, or also called as current terms, or also called as 0-year value, is $15 per unit, right? And inflation of 5% per annum is applicable to sales, right? Calculate the inflated or calculate the sales after inflation. Okay? How will we do this? Tell me, chalo. सर $15 को 5% से इंक्रीज करते हैं 5%? Okay. Chalo, great. आ जाओ then. Wait, let me copy paste the sales unit once again. आ जाओ. Then selling price, how should I put up? Tell me that. First year, what should I put up selling price? $5 or $15 or no? No, so Current 15 term means into what? 1.05. Yeah. 1.05. So 15 हाँ into 1. 15% ऐड करें हाँ वो जो 5% है वो ऐड करें On the $15, 5% will be added. So if I add one more column here, wait, Of I'll zero. do जीरो ऐड कर दो सर 0, right? 0, 15. बराबर है? This into 1.05. Okay क्या दोस्त? Control V, Yes, sir. Control V, Control V, Control V. Tell me how much is the sales in dollars? Okay क्या? Now this can be done what? Tell me. Like this in a working note. A lot of students ask me, sir, ऐसा working note बनाना पड़ेगा क्या? ऐसा working note, is it required to make a working note? If you want, you can make a working note. By the end of the portion, probably you will be very confident doing this without a working note. But I would recommend using the working note approach. It will take maybe 10-12 seconds or 30 seconds extra in the exam, but you will have clarity and even the examiner will know what you are doing. If you are okay with this, then can I go ahead? Yes, sir. Now I will say only single inflation rate. This is single inflation rate given. What if same thing but multiple inflation rates are given? Have a look. Can there be multiple inflation rates? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Sir, example. Give example. बताता हूँ. I'll show you in the question only. Have a look. तलम में ही था रे.
चलो मैं भी नहीं. Wait, where was that? Amberley Company. Yesterday we saw Amberley Company. Here have a look at Amberley Company. Hmm. 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 Predicted rate of what? Inflation. Can there be different inflation rates for different years? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So, Aja, I will say selling price inflation. Here only I'll add. Okay. 5%, 6%, 7%, 8%, and 10%. Okay. Tell me. So, Aja, how will I find selling price? I'll add 0 here as well. Now wait. I will do selling price before inflation. Okay. Every year selling price before inflation is 15. You could write like this also. This is also one way of writing it. Correct. And then inflation is how much every year? Bolo. 5% year, 5% year, then 6% year, 6%, 7%. 7% year, 8% year, and 10% year. इसमें कोई problem? Now my question to you: what is selling price after inflation? बोलो. So you will add 15 plus 5%. ठीक है. 15, right, into 1.05. 0. Correct. Right. This is first year. Second year, what I will do? 15.75 into 6%. हाँ, into 6 नहीं, into add करना पड़ेगा, into 1.06. Correct. Yeah, 1.06. See, two ways you can do this. One is what? Sir, this 15 into 1.05 first year का inflation into again 1.06 second year का inflation. This is also one way of doing it, right? Yes, sir. Sir, third year, how to do 15 into, sir, first year 1.05, second year 1.06, third year 1.07. This can also be अगर done. इसमें मिस्टेक हो जाए, कब भूल जाएंगे किसी भी एक साल में हाँ, लगाना. this is one way of doing it. Long cut method. 15 into 1.05 into 1.06 into 1.07 into 1.08, and last but not the least, 15 into 1.05 into 1.06 into 1.07, 1.08 into 1.10. मैं ये क्यों करा रहा हूँ? मैं ये क्यों करा रहा हूँ मालूम है क्या? You will see that in a lot of questions, okay, you will see that in a lot of questions inflation is done in this way. You will see आंसर में जाओगे, कहाँ जाओगे बोलो? इन द आंसर, सजेस्टेड आंसर में इट इज डन दिस वे. ये ऐसे. तभी बच्चे क्या करते हैं? सर ये क्या किया है? दैट्स व्हाई गिविंग इट. ओके. अदर वे ऑफ डूइंग इट. ओके. बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, दिस 15 करेक्ट इनटू डायरेक्ट 1 प्लस दिस 5%. देखो कैसे कर रहा है आराम से. ओके. हो गया. फिर दिस 15.75 इंटू 1 प्लस, बराबर है क्या दोस्तों? देख लो. दिस इंटू 1 प्लस 8%, दिस इंटू 1 प्लस दिस परसेंट. मेथड 2. क्योंकि ना सजेस्टेड आंसर में आप देखोगे ना, फिर बच्चों सर ऐसा ही. बोथ द थिंग्स आई हैव गिवन. नाउ हाउ यू वांट टू डू, यू डिसाइड. बराबर है क्या? चलो आगे. कैन आई गो वन मोर स्टेप अहेड? नाउ लेट मी ट्विस्ट इट अ बिट. अब देखो, आई एम जस्ट चेंजिंग वन वर्ड, ओके, एंड द होल मीनिंग चेंजेस.
ए रुको रे, इधर ऊपर ये करना पड़ता था, इधर ये नहीं आएगा। हाँ देखो, नाउ आई एम चेंजिंग वन वर्ड, सेलिंग प्राइस टुडे करंट प्राइस टर्म्स। In this case, how will we do it? सर बोलो। फर्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। Okay, what do you say everybody? Sinchana, what do you say Baba? Yes, sir, it's adjusted. Selling price before inflation 15 every year, but now inflation percentage. Bolo, how will we do it? Now tell me, chalo, first tell me what is selling price after inflation of first year. Good. Selling price after inflation of first year. सर 15 ही रहेगा। 15. 15 ही रहेगा। हाँ सर 15 ही रहेगा। for year Okay. Then second year, what will be the value? 5%, 6%. 15 plus 5%. 15 plus 6%. 5%? Yes, 6%. 6, sir. 6%. So into 1 plus क्या करो? 6%. और ऐसा क्यों कर रहा है? See, the first year inflation 5%. Is it already added when I say expected value for year 1 is $15? That means for the first year, are you going to inflate this $15? No. For till the end of first year, it is going to be 15% only. Right? Have a look. Then second year, what to do? दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। मेथड 2 से बता रहा खाली, this into what should I do? 1 plus what? The 7%. Correct? 7%. बराबर है क्या? नेहल क्या लगता है? सिंचना, what do you think? Sir, from here, how to calculate the selling price for the 0th year? Sorry, Not required. 0th year selling price not required, no? Do you have any sales in 0th year? Ever? No, No. but still, Not required at all. Unnecessary. Not to even go there. Okay. So sales कितना है भाई? Sales in dollars. Sinchana, what do you say, Baba? All okay at your end? Where is Purvi today? Purvi missing today? मुस्तफा, समझा क्या? आता है सर ये। आता है ना? नसीब. Harshita, what do you say? Harshita is there or no? सर हमने तो हर्षिता. काफी टाइम स्पेंड किया था। हाँ, you have to spend time here. नहीं तो silly mistakes में you lose marks. Correct? इधर sales in dollar कर देते हैं. Without investing time in the basics, you will never be able to succeed in exam. चलो, can I go ahead, everybody? First year plus multiple inflation rate. कोई टेंशन? चलो आगे. yes, sir. And what if I had given same question? ये वाला question, correct? Like this, and inflation was 5%. बोलो, will inflation apply from first year or second year? From second year, first year. From Second year. second or first year? तो देखो ये 15 यहाँ हो जाता क्या? And everything would have changed. Means what? 0th year दिया ही नहीं है, right? So I would do 15 into 1.05 into 1.05 and so on. Have a look. क्या लगता है? शर्वनी, रोहित, Yes, sir. Yes sir. okay, मोहित जी,
जस्ट ट्राइंग टू गिव यू मोर प्रोस्पेक्टिव इनटू थिंग्स, बाकी कुछ नहीं। सर वो ऊपर आपने क्या किया है वो एक्सेल में, वो आप बता इधर सकते हैं क्या? वो जो मेथड 2 में आप जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कौन से में? ऊपर ऊपर स्क्रॉल करो ना, मेथड 2 आपने लिखा है, हाँ वो मेथड 2 में। दिस 15.75 तो वो आप इनटू, जो आगे के इन्फ्लेशन नहीं लेते हुए सिर्फ नेक्स्ट इन्फ्लेशन रेट डाल रहे हो बस। ऑब्वियसली। तो वही कंफ्यूजन नहीं होना बोल के इधर क्या सर बोला था वही मैंने, थोड़ा सा पहले आदत थी वो एक एक डालने का वो। एक एक डालोगे तो देयर आर चांसेस दैट यू मे हाँ गो रॉन्ग मिस समवेयर। करेंगे सर, वही ठीक है सर। करेक्ट। चलो, क्या लगता है यहा, क्या लगता है बेटा? जिया, सुखमीन, ओके क्या? Yes, हाँ sir. सर। थोड़ा बोलो, संडे मॉर्निंग है, आई Yes, नो sir. थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए टू कम टू क्लास ऑन संडे मॉर्निंग, राइट, बट अभी कोई ऑप्शन भी नहीं, राइट, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, बराबर है। सर हम लोग दिन में ऐसा क्यों नहीं लेते हैं क्लास? क्या? सर दिन में, सर जिन लोग का हाफ डे ऑफिस होता है उसमें भी आराम हो जाता है सैटरडे को। कैसा है, अभी दिन में लेने को मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्या है, एट द एंड ऑफ द डे फिर सबका ही कन्वीनियंस देखने जाऊंगा तो किसी का भी कन्वीनियंस फुलफिल नहीं होगा, ऐसा है। तो वो सैटरडे संडे का तो कंफर्म है। हाँ, वीकडे में आप मेरे को बोलो ऊपर नीचे टाइम अपन कर सकते हैं। हाँ, दोज हु आर नॉट देयर एट द स्टार्टिंग डिस्कशन, राइट, वी आर प्लानिंग वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, 10 to 11 या 11:30 तक क्लास चलेगी, राइट, पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट, वो बोलो। वेनसडे थर्सडे फ्राइडे 10 to 11:30, हाउ मेनी ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट, वो बताओ। कोई आप है ऐसा विल वेनेसडे नॉट को बी एबल कैसे टू? ले रहे हो? क्या? वेनेसडे क्लास कैसे ले रहे हो? रात को, अच्छा रात। सुबह नहीं। तेरे को ये लगा ना ATX से क्लास को नहीं आएंगे हाँ सर? ना, मैं इसके लिए वही नहीं सोच रहा नहीं, हूँ। रात को रे 10 से। रात को 10 बजे ना? हाँ ठीक। हाँ, Sir, can we make it एवरीबॉडी, 9:30 to 11 instead सॉरी of 10 to 11:30? हाँ सर थोड़ा ज्यादा लेट हो जाएगा 11:30 तक सोने 11:30 को। तक, हाँ ठीक थोड़ा है, 9:30 So तक किया तो भी 9:30 to चलेगा। 11. ओके, ठीक है, लेट मी सी, लेट मी गिव यू कंफर्मेशन टुमारो, क्योंकि FM वाले पीपल आर ऑल्सो क्राइंग के 6:30 to 9:30 नहीं चाहिए, 7 to 10 चाहिए, ऐसा है। तो आई एम बोथ वेज, क्या है, कॉर्नर देयर, ऐसा है। ठीक है, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। ओके, 9:30 का 9:45 का 9:45 कर देंगे 10 का, राइट, वी गेट क्लियर बाय 11:50। हमारा लास्ट टाइम ऐसा ही था, 9:45 to 11:50। अगर आपको ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके विथ मे बी लेट्स से 9 to 11 टाइप्स इन द मॉर्निंग, 9 to 11 नहीं इन द नहीं मॉर्निंग। सर, एकदम पॉसिबल नहीं सर, सारा मीटिंग नाइट ही ठीक सब है। उसी टाइम पे होता है। सर जिम जाना रहता है। नाइट, नाइट ही ओके है। हाँ हाँ जी। नाइट ही अच्छा है, सुबह जिम जाता। सर कोई नाइट शिफ्ट में काम नहीं करता है ना? क्या मालूम, मेरे को नहीं मालूम कोई करता है क्या भाई नाइट शिफ्ट में काम? नो सर। नहीं ना, हाँ, सब डे शिफ्ट वाले हैं ना। हमारा नाइट शिफ्ट हो रहा है मैडम, 11 बजे तक, हमको सुबह दूसरे दिन वापस 9 बजे क्लास रहती या 10 बजे क्लास रहती। सर या तो हमको अर्ली तो मॉर्निंग भी करना हो तो वो भी सही है, अराउंड मेरे 6। को वो भी चलेगा, बट मॉर्निंग ना ही बोलते सब लोग, अर्ली मॉर्निंग। मेरे को तो 7 to 9 बेस्ट लगता है, मॉर्निंग। हाँ सर वो चलेगा क्या? अच्छा है सर। सर आई वेक मॉर्निंग अप 7 to 9। सो आई एम ओके विद इट। नहीं, कितने लोग नहीं आएंगे वो बोलो, मॉर्निंग 7 to 9। ये देखो पहले ही मैसेज आया है। नहीं सर। नहीं, नहीं सर। नहीं सर। मेरे को मालूम है ना, मॉर्निंग और ACCA स्टूडेंट डोंट गो हैंड इन हैंड एट ऑल। सर हम लोग का यही एग्जाम अगर, टाइमिंग ही दोपहर में होता है। हाँ, यही अगर CA की क्लास होती ना और फैकल्टी बोलती पौने सुबह 7 7 बजे आना बजे पड़ता। आए। हमारी CA की टाइमिंग क्लास थी पौने 7 बजे, 6:45 इन द मॉर्निंग। 5 बजे राइट, तक चलती थी सर, 5 से या बच्चे 7 आते शाम थे, को। बच्चे आते थे, राइट, क्योंकि फैकल्टी क्या, मैं पूछता हूँ क्या है, वी आर व्हाट। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, आप लोग अच्छे हैं। अभी क्या है मैडम, ऑल ईयर वैल्यूज गिवन, अभी कुछ ऐसा भी नॉट सीन व्हाट इन द एग्जाम क्वाइट, बट ये एक थिंग आई हैव सीन दिस थिंग कम अप इन द एग्जाम।
देखो इन्फ्लेशन एट 5% पर एनम इज एप्लीकेबल। तो देखो क्या करो, इधर भी मेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा। हाउ डू आई डू इट? दिस हैज टू बी सेलिंग प्राइस बिफोर इन्फ्लेशन, करेक्ट? बोलो, हाउ शुड वी डू दिस? टेल मी, हाउ कैन वी डू दिस? Apply inflation from first year. Sir, Apply inflation from first year itself. 1.05 से 15 मल्टीप्लाई यहाँ पे यू हैव टू मेक इन्फ्लेशन फैक्टर। देखो आई टेल यू, दिस विल बी 1, this will be this into 1.05, no. correct? Then every year inflation is this much, and then you should do selling price after inflation. मतलब sir, this 15 into 1.05, 20 into 1.05 square, 21 into 1.05 cube, 22 into 1.05 raised to 4, and 18 into 1.05 raised to 5. Have a look. So you are saying that inflation is increasing by 5% हाँ every year. हाँ, ये एक है। एक और चीज कैसे कर सकते हो आप, देखो, वन मोर वे ऑफ डूइंग दिस, दिस इज मेथड 1, एफएम में किया था ये। मेथड 2 कैसा है? हैव अ लुक, आई एम डूइंग मेथड 2। आई एम सेइंग 15 इंटू 1.05, Yeah. आई एम सेइंग 20 इंटू 1.05 इंटू 1.05 या 1.05 स्क्वायर। चलेगा क्या? Sir, देखो, वैसे it shouldn't be 1.05 in all the years because वहाँ पे कहीं लिखा नहीं है. हाँ, अरे नहीं ना, ये अलग अलग सेलिंग प्राइस। ये क्या बोला है, पहले साल की एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस बिफोर इन्फ्लेशन इज 15, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड ईयर इज 20 बट बिफोर इन्फ्लेशन। मैंने क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस कौन से टर्म्स में है, बोलो? Current terms. करंट टर्म्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई। करंट टर्म्स मतलब क्या? करंट टर्म्स में एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, करंट टर्म्स में एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, 21 इंटू 1.05 रेस टू 3, 22 इंटू 1.05 रेस टू 4, 1.05, 18 इंटू 1.05 रेस टू 5। मेथड 2 ए करो रे, खुद करो तुम लोग। इफ यू डोंट डू इट ऑन योर ओन, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनी मेथड। विच मेथड इज कंफर्टेबल विथ यू? आपको कुछ भी नहीं समझेगा। यू विल जस्ट बी लुकिंग एट व्हाट आई एम डूइंग एंड गेटिंग हैप्पी इफ यू नो इट। पहले बोल रहा हूं भाई, ध्यान रखना। इसमें मल्टीपल इन्फ्लेशन आ सकते हैं क्या? इधर क्या है, ऑल ईयर्स वैल्यू गिवन प्लस सिंगल इन्फ्लेशन। देखो अब बहुत वैरायटी है मेरे पास, तुम मांगोगे उतनी वैरायटी है। हाँ, वैरायटी बहुत है भाई। मैं क्यों करा रहा ये सारी वैरायटी? देयर इज अ रीजन टू दिस। वन आउट ऑफ दिस इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम। यू हैव टू बी वेरी व्हाट लॉजिकल अबाउट इट। जिन्होंने दिया है एग्जाम, राइट, पीपल हु हैव गिवन एग्जाम, आस्क देम। इसमें से ही एक निकल के आता है। नेहल क्या लगता है, नेहल ने दिया एग्जाम, पूछो उसको। इतना क्लैरिटी आता है कि तुमको ऐसा इन्फ्लेशन विन्फ्लेशन? हाँ सर, वो क्लैरिटी आपके वजह से ही था एफएम में. वो इतना क्लैरिटी, इफ यू आर वेरी क्लियर ऑफ एवरी क्वेश्चन दैट कम्स अप, तभी तो मजा आएगा। अभी इसको और टफ बनाते, इफ यू आर ओके विथ इट। हैव अ लुक, आई विल गिव यू 2 minutes टू गो थ्रू इट। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। 0 ईयर वैल्यू गिवन, 1 ईयर फर्स्ट ईयर वैल्यू गिवन इज ओके। सिंगल रेट मल्टीपल रेट हो जाता। सुनो, दिस इज समथिंग डिफरेंट। If it comes in exam, it is a straightforward question, but you will not be able to answer if you don't know this is to be done. Yes, sir. Everybody okay with this? Sinjana, what do you say? Iha, what do you say? Okay है क्या? Yes, sir. तनीश चुप बैठा है? यस सर, समझा। हाँ, अब देखो मैं क्या कर रहा, इन्फ्लेशन
चल कैसा करेंगे? हाउ विल यू डू दिस? बोलो. दिस इज अ बिट डिफिकल्ट. दो मेथड से हो सकता है. So you have to add, I believe, four. In the Add. first year it will be 4%, but in the second year it will be 4 and 8. यानी एक ऐसा भी कर सकता हूँ, देखो आप, दिस इंटू 1.04, फिर सेकेंड ईयर में कितना, दिस इंटू 1.08, Right. देन दिस इंटू 1.05, 5. then this into 1.02, then this into 1.06, Right. correct, and then do what, this into this. इसमें तो तीन मेथड है, चलो तीन मेथड से करा था, मेथड 1, मेथड 2, या दो ही, चलो दूसरा ही मेथड करा था, मेथड 2. मेथड 2 क्या होगा देखो, 15 into 1.04, then this into 1.08, this into 1.08 चलेगा क्या? नहीं चलेगा. Sir, no, 20 you have to take. हाँ 20 लेना पड़ेगा. 20 यानी क्या है, फिर कैसे करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 15 इंटू 1.04, देन देखो इज इक्वल टू 20 इंटू 1.04 इंटू Into 1.08. 1.08. 21 पे तीन बार, 21 इंटू 1.04 इंटू 1.08 इंटू 1.05, 22 इंटू 1.04 इंटू 1.08 इंटू 1.05 इंटू 1.02, and last but not the least 18 into 1.05 into 1.04 into 1.08 into 1.05 into 1.02 into 1.06. बराबर है क्या दोस्तों? Yes, sir. Everybody. Arvind, what do you say? Sharwani, Yes, sir. काय वाटतंय? Sinchana, Yes, sir. is all this taught in your college? No, sir. No. Very dangerous. Correct. चल, so which all parts we are done from the notes? देखो, 0 year or current year value given plus inflation applied. Inflation applies from year 1 itself. First year value given plus inflation applied. We have done all possible options. Inflation applies from year 2. All year value given plus real terms value or current terms value. Correct. I have done this also. Now, last part. Can I go ahead? Yes, sir. Last question. ये तो सबसे इजी. ओके, तीन वर्ड है भाई, एक्सपेक्टेड, प्रेडिक्टेड, एंड तीसरा क्या है भाई, एस्टिमेटेड. How will you calculate sales in dollars? Tell me. Will you apply inflation or not apply inflation? Bolo. If expected value, estimated value, predicted value is given, will you apply inflation or not apply? Not. I think we Not don't apply at all. Right? These inflation are is already inflated. considered. सर कुछ भी बोलते मन से बताता मैं. I have an example to show.
नो नीड टू इन्फ्लेट अगेन। और सर कुछ भी मन से देखो ना, एम्बरले कंपनी देखो, एम्बरले कंपनी, रीड दिस, इतना पार्ट रीड करो। टेल मी, वुड यू अप्लाई इन्फ्लेशन ऑन दिस पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो और नो? ये पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज है, राइट? आर दे इन्फ्लेशन एडजस्टेड और नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड? देख के बताओ, एक मिनट। हाँ एस्टिमेट से सर, तो एडजस्टेड है। हाँ, तो इफ देर इज अ वर्ड व्हाट? एस्टिमेट। Estimate. Means what? Are you going to inflate the cash flows? नो सर। No. और भी क्वेश्चन है, रुको। The market value of the land and building time is estimated to be 80% of the current value. Means after 4 years value will be 80% of the current value. Will you inflate that value or is it already inflated for 4 years? बोलो। Already It already inflated. increased. Already been considered. So you don't have to put on inflation. अब देखो ये क्या बोला है, एस्टिमेटेड क्या दिया हुआ है, बैचेस प्रोड्यूस, प्रोडक्शन का एस्टिमेशन दिया है, बट सेलिंग प्राइस देखो जरा क्या बोला है, ये क्या है, 0 ईयर वैल्यू है। देखो जरा, ये एक पैराग्राफ रीड करना जरा। सेलिंग प्राइस का मेरे को बता सकते हैं क्या, हाउ मच विल बी सेलिंग प्राइस? फर्स्ट ईयर सेलिंग प्राइस बता दो, चलो बाकी कुछ मत बताओ। सर यही होगा फर्स्ट ईयर सेलिंग प्राइस जो अभी दिया हुआ है। 115200। नहीं नहीं सर, इसमें नहीं मतलब नहीं सर, इसमें ऐड एडजस्टमेंट करेंगे होगा। आप उसमें हाँ, कितने का इन्फ्लेशन। एडजस्टमेंट होगा? वन वन फाइव टू जीरो जीरो, ये 0 ईयर की सेलिंग प्राइस है या फर्स्ट ईयर की सेलिंग प्राइस है? सर 0 ईयर। Sir, 0 year current. करंट लिखा है, 0 ईयर। बराबर है। फिर 115200 से बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी देखो जरा, नीचे इधर बोला है 5%, 10% So selling price is in 5%, sir. हाँ, सेलिंग प्राइस एंड स्पेशल पैकेजिंग कॉस्ट 5% से बढ़ेगी, बराबर है ना? एवरी ईयर बोल दिया, यानी क्या, ये कौन सा आपका ऑप्शन है, करंट सेलिंग प्राइस गिवन प्लस सिंगल इन्फ्लेशन रेट, The first one. बराबर है ना? देख लो, बराबर है भाई। ये सारे क्वेश्चन में काम आने वाला आपको। आपको लग रहा है इधर क्या करा रहा है ये येड़ा, बराबर है। खिचड़ी हो गई दिमाग की। मैंने बहुत किया है ये, देखो ये क्या है, 0 ईयर है या फर्स्ट ईयर है? फर्स्ट ईयर है। First year, sir. और कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों फर्स्ट ईयर की है क्या बाबा, बोलो? Yes, sir. देख लो, झूठ नहीं बोलता मैं। एक एक क्वेश्चन घोल के पिया अपन ने, बराबर है। तो आपको कोई प्रॉब्लम, हाँ इधर आ जाओ। सेल्स यूनिट दिए, सेल्स रेवेन्यू दिए, देखो जरा। और सुनो ना, नीचे इधर इन्फ्लेशन भी दिया होगा कहीं, तो ये देखो इधर इन्फ्लेशन भी दिया है। तो एक मिनट, ये सेलिंग प्राइस या सेल्स यूनिट या सेल्स रेवेन्यू जो है उसके ऊपर इन्फ्लेशन लगाओ कि नहीं लगाओ? नहीं लगाएंगे सर, नहीं लगेगा, एक्सपेक्टेड दिया हुआ है। क्या एक्सपेक्टेड है? दिया हुआ है। बट मेरे को बोलो, अगर मैं आपको लिखा के नहीं देता, इवन इफ आई हैव नॉट गिवन यू इन राइटिंग, वुड यू बी एबल टू इंटरप्रेट दिस? No, sir. नहीं नहीं सर, ये इतने माइनर पॉइंट्स तो कोई भी लिखा के नहीं देगा, मेरे को नहीं लगता। क्या बोलते कश्मीर मैडम, याद है ना आपको? सर मैंने तो बोला ही, हम लोग तो बहुत टाइम लगाए थे, इन लोग तो सर काफी इंटेलिजेंट बैच है इस बार। ऐसा कुछ बैच, ऐसा कुछ नहीं रहता। क्या रहता, तुम्हारा विलिंगनेस रहना, और क्या है ऐसा। अब देखो, हाँ, यूजिंग द अजम्पशन सेलिंग प्राइस 116 ईयर 1 एंड इंक्रीजेस बाय व्हाट, यूनिट सेलिंग प्राइस बाय 5%, यानी वो कर दिया उसने सब कुछ इधर। इसीलिए क्या लिख के दिया भाई, ये पढ़ो पूरा, रीड दिस फुल्ली।
उसने नीचे एक्सप्लेन किया, बट नहीं भी करते तो आप सर सेल्स पहले रेवेन्यू ही लाइन एक्सपेक्टेड में दिया बोनस, हुआ है ना, तो वही कंसिडर करेंगे। Expected field. नहीं, अगर ये नहीं भी दिया होता पैराग्राफ, सुनो ना एक मिनट, दिस पैराग्राफ वाज एलिमिनेटेड, सुनो, हाँ, तो वो एस्टिमेटेड दिया हुआ ही है। till it is given estimated, would you again add inflation नहीं to it? नहीं सर, No, sir. पॉसिबल ही नहीं। That's what I'm trying to say. But to interpret this, हाँ, other cost of the project forecast to be as follows, क्या बोला है? It is already After taken. ऑलरेडी taking इंक्लूडेड है बट ना इन्फ्लेशन। मैं आपको बोलता, मेरे खुद के एग्जाम में हुआ है, माई ओन एग्जाम व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, राइट? तुमको क्या लगता है मेरे को ये सब कैसे पता चला? देखो, दो तरीके के टीचर होते हैं, राइट? वन हु हैज नेवर गिवन एएफएम, सुना? वन हु हैज नेवर गिवन एएफएम एंड इज टीचिंग एएफएम, मे बी सीए है, कोई और है, राइट? ही विल टीच यू ऑल दीज थिंग्स, राइट? ही विल टेल यू, राइट? ये फोरकास्ट, ये वो सब, राइट? जब मैंने खुद हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरे को नजर आया कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ना मोस्ट ऑफ द कैश फ्लोज में आता है, मोस्ट ऑफ द कैश फ्लोज हैज इन्फ्लेशन इंपैक्ट, बॉस, राइट? एंड हर एक इंपैक्ट अलग है, हर एक क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, सारों की इन्वेंटरी बने। जब मेरे को खुद पेपर पास करना है तो आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन सर वेयर आपने आई वाज एफएम में भी डूइंग लिखवाया था ये पूरा। एवरीथिंग आई राइट, राइट? दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। ओके क्या बॉस? चलो, नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखते क्या? टैक्स पे चले क्या? टैक्स पे चले, कोई टेंशन? सर 2 में 2 एक्सपेक्टेड वाला क्वेश्चन दिखा हुआ है क्या, इन्फ्लेशन वाला? कौन सा रे बेटा? ये वाला, ये रहा ना? वही एक्सेल। एक्सेल दिखाओ, कौन सा दिखाओ बेटा? ये एक्सपेक्टेड वाला, हाँ। हाँ सर, बोलो। यही हाँ। हाँ, ठीक है, समझा सर। ऑलरेडी इन्फ्लेट है ना, यू डोंट नीड टू इन्फ्लेट इट अगेन। ओके समझा ना? व्हाट डू यू से? जिया, काय वाटतंय? Yes, sir. Yes, sir. Understood. If there is expected, look for that word. There are 3 words. What are the 3 words? एक्सपेक्टेड, प्रेडिक्टेड, Estimated. भाई ये आ गया ना क्वेश्चन में, चुपचाप इन्फ्लेशन को, and they will do 100% do in a foreign NPV question, they will give you inflation to confuse you 100%। मैं बोल रहा हूं आपको, इधर भी इन्फ्लेशन देंगे, फिर सेलिंग प्राइस का भी इन्फ्लेशन देंगे, वेरिएबल कॉस्ट का भी अलग से इन्फ्लेशन देंगे, एंड देन दे विल गिव यू एस्टिमेटेड वैल्यू। ही वांट्स टू प्ले अराउंड विथ योर ब्रेन, दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, करेक्ट? सो स्टे विजिलेंट दैट बॉस, दिस शुड नॉट हैपन। ओके बॉस, आ जाओ, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग टैक्स, उसका भी टेबल अपने पास रेडी है, वी कैन सेव टाइम। एक ही सेकेंड, लेट मी ब्रिंग इन द टेबल। पहले टैक्स टाइमिंग लिख लो, लॉस एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे, पहले टैक्स टाइमिंग लिख दो। टैक्स टाइमिंग, पेड इन सेम ईयर, पेड इन अरियर्स, ये इतना टेंशन वाला बात नहीं। लॉस एडजस्टमेंट बाद में लिखेंगे। टैक्स एडजस्टमेंट के लिए अलाउ मी सम टाइम, आई विल कम बैक टू दिस, पहले आप लिख लो, ठीक है? टैक्स टाइमिंग लिख लो। फॉर लॉस एडजस्टमेंट आई एम कमिंग बैक टू लॉस एडजस्टमेंट इन सम टाइम, इतना लिख लो खाली। पेड इन सेम ईयर, पेड इन अरियर्स, वो ठीक है, इतना मेरे को कुछ टेंशन नहीं है। टैक्स टाइमिंग लिख लो खाली, डन।
एक और टेबल बना लो, उसके बाद ब्रेक देता, ब्रेक के बाद वी कैन कंटिन्यू विथ टीएस ऑन टीएडी. राइट डाउन टीएस ऑन टीएडी depreciation methods, WDV or reducing balance method, SLM basis normal. और SLM में भी एक वेराइटी है, SLM basis plus fixed percentage and then 100% depreciation in year 0. ये लिख लो, राइट इट डाउन. मेरे को तो लग रहा है आप एफएम ही पढ़ रहे. हाँ, so it is FM but here वही indirect सब method is रिपीट कर दिया आपने. मैं कल वही देख रहा था. something. वो डायरेक्ट मेथड का भी पूरा फॉर्मेट सेम ही है, बस कुछ It is टैक्स copy पेड pasted from और FM वो only. टैक्स पेड और वो कॉलम चेंज हो गया, बाकी सब नीचे आ गए It इनडायरेक्ट is मेथड from what? रिशफल्ड वाले में सर. It is from FM only. I have copy pasted the direct format. Direct format is famous for in FM. Indirect format is famous in what? Tell me. AFM. ऐसा लिखो TS on TAD direct method. सर प्लेन एनपीवी एपीवी के पार्ट में आता है, और सर प्लेन एनपीवी फॉरेन एनपीवी में भी आता है, प्लेन एनपीवी एपीवी में भी आता है. प्लेन एनपीवी अगर आप आगे जाओ, कैश फ्लो एनालिसिस comes in business valuation as well. सर ये भी लिखना है क्या? हाँ लिख दो ना, काम हो जाएगा अपना, फिर ब्रेक ले लेते हैं. ऊपर का लिख लेगा आपने. हाँ होगा सर. सर वो आता थर्ड वाला I'll go SLM बेसिस प्लस क्या लिखा है, फिक्स्ड फिक्स्ड परसेंटेज. सर वो थोड़ा नया मेथड है, जूम आउट करो ना तो नीचे का भी नया दिखेगा. मेथड है probably, which probably you must have not seen in FM. या सर राइट. FM में probably एक है कि वो देखा नहीं गया FM में. Opening WDV of last year greater than less than. Sorry, हाँ, zoom opening out करो WDV ना. of last year greater than scrap value and opening WDV in last year less than scrap value. ठीक है. ठीक है, चलो टेक अ ब्रेक. 10:32 10:50 तक आते हैं या 10:52 तक आ जाओ. चलो 20 मिनट्स ले लो. सर तो 12 बजे का 10 मिनट ही देंगे क्या? हाँ, सर तो 15 मिनट ही दे दो ना, लंच टाइम रहता है. 10:50 लो ना, क्या उसमें क्या है?
चलो everybody, Yes, sir. write down next heading, tax plus depreciation adjustment. First write down direct method. Okay, now first listen to what I'm trying to say, then what we will come back to this. Okay, direct method versus you could write indirect method. I'll give you time to write, don't worry. Two ways in which tax can be taken care of. Everybody back? चलते क्या? हाँ, have a look. Right now we are following what approach? Cash flow approach. Or better, I'll show both approaches. Correct? We have sales 100 minus variable cost 30. You get contribution 70 minus fixed cost 30 minus depreciation 10. Right? You get what? 30 ka PBIT. Correct? For a minute, let's pause here. Let's say interest is 0, or we are not going to deduct interest. Interest is 0 only, right? For a minute, let's assume that. Okay, you have PBT. Okay, PBT is how much? Tell me. 30 minus tax at 30%. Okay, how much is this then? 9. 30 minus 9 will give you 21. This is profit after tax. Wait, don't write. There is a correct way to write it. इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? I come to up to PAT. Okay. Can I also say this is net operating profit? No PAT. Profit after tax. ठीक है ना? आ जाए. उसके बाद can I say cash flow approach? Sales 100 minus variable cost 30 gives you contribution of 70 minus fixed cost 30 minus, can I do depreciation? No, 0. No. 40 will be what? Net operating cash flow. This is before tax or after tax? Tell me. Before tax. Here also I am saying interest is 0. Correct? For once, assume interest is 0. You have from this 40, you will deduct what? Tax at 30%, 12. But sir, because of the depreciation, there is TS on TAD. Correct? So minus ka plus will happen. This is 12 is minus. TS on TAD, how will you calculate? 10 ka depreciation into 30%. So 3 ka saving. So logically you are getting what? 40 में से 12 gone, 3 added. 3 saved, 12 to be paid, but 3 saved. So 9 you will pay. So you will have 31. Any problem here? Bolo? No. Now sir, can I quickly go from profit approach to cash flow approach? Right? This is nothing but net operating profit after tax. This is called as net operating cash flow after tax. Any problem in this? Can I go from NOPAT or net operating profit after tax to net operating cash flow? If I want to go, I will do what? Add back the depreciation here of 10 and 31 will come. This is called what? Bolo. Net operating cash flow after tax. Can I go easily here from profit to cash flow by just adding back depreciation? Is the net operating cash flow after tax in profit? I have gone to cash flow, but via the profit approach. Cash flow approach, profit approach. Correct है क्या? Have a look.
I have gone. One is the direct cash flow method of going to net operating cash flow after tax. Correct? Other is the profitability approach of going to net operating cash flow after tax. Are both the approaches okay with you? Tell me. Yes, sir. Any problem? Yeah, what do you say? Okay या नहीं? मोहित क्या लगता है? सिंचना. Yes, sir. Going from profit to net operating cash flow, you add back the depreciation and you can do it quickly. Sir, either see what? See, depreciation has in profitability approach, depreciation has three impact. Profitability approach, depreciation has three impact. Sir, how three impact? Only two impact. You are wrong, my friend. Right? Depreciation you deduct from the profit, you get PBIT. Correct or not? Tell me. Then is it having an impact in tax also? If depreciation was not debited here, would the tax increase? Yes. So depreciation has an impact here in the PBIT, has an impact in tax, and also when you are going to what operating cash flow, depreciation again, logically you are deducting depreciation and adding back depreciation. Tension ही नहीं. Correct or not? तो इफेक्ट तो वैसे नहीं ठीक है. Three impact, but here only one impact. What is the one impact? You say, sir, Tax don't shield. give impact here, don't give impact here, only tax shield ka impact you give. Right? See, this is the direct method. This is generally called as direct method. लिख लो. Direct method. And this is called what? Profitability से when you go indirect method. Correct or not? I want to logically go to where? Tell me. In Net both the operating situations, cash where am I going? after tax. Net operating cash flow after tax. Net operating cash flow after tax. अरे सर ये किधर है? एक मिनट. Go to direct reshuffle. Go to direct reshuffle. Direct reshuffle. What is checkpoint 2? Tell me. Yes, sir. What is checkpoint 2? Net operating cash flows after tax. बराबर है क्या? Direct वो जो not reshuffled was for FM. Now this is defunct. Main important. Were you okay with direct reshuffle? या direct reshuffle में problem था? Tell me. No, sir. Okay था सबको. Direct reshuffle was okay. Sharwani, what do you say? Yes, sir. क्या लगता है तनिष? Direct reshuffle any problem? मुस्तफा बोलो भाई. Yes, sir. So then now can I do direct या NPV format indirect as well and come to net operating? See, मैं अगर यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक ही और सेल से लेके नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो तक ही जो सफर है, डायरेक्ट एक अलग और इनडायरेक्ट एक अलग. बराबर बोल रहा हूँ क्या? क्या लगता है रोहित? हाँ सर. अरविंद, व्हाट डू यू से? Yes, sir. If wait, if I make a copy of this, have a look. And I say indirect, I want to do indirect. देखो, I only do one thing, have a look. I add depreciation here. If I deduct depreciation from here, देखो आराम से. Now this is what? Is this net operating cash flow? Or now this becomes net operating profit before tax? Tell me. Profit. Profit. चेक पॉइंट 1 हो गया ये. फिर टैक्स. अब टैक्स किस पे निकलेगा? प्रॉफिट पे निकलेगा या कैश फ्लो पे निकलेगा? Cash flow. Sorry, profit पे. हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे. बराबर है. In interest or any whichever way we are going to eliminate. But will you have TS on TAD here ever? No, sir. नहीं. इनडायरेक्ट में कभी टीएस ऑन टीएडी आता है क्या? देखो जरा, इनडायरेक्ट मेथड में टीएस ऑन टीएडी आता है? नहीं. बट सर यू कम टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. देखो, देन आई हैव कम टू व्हाट? ये हो गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये हो गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. क्या हो गया? टैक्स माइनस करने के बाद After tax. आफ्टर टैक्स. बराबर है.
ये हो गया चेक पॉइंट 2। सर आपने फिर प्रॉफिट नहीं लिया तो उसकी वजह वो डेप्रिसिएशन नहीं लिया, उसका इम्पैक्ट इसमें आ गया है क्या? हाँ रुक मतलब ना, मैं रुक जा ये रुक जा बोलना रुक जा चाहता रुक हूँ। जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। डेप्रिसिएशन आई विल एड बैक, करेक्ट। जो इधर डिडक्ट किया है ये हाँ हाँ बराबर है, ये हाँ यहाँ पे एड बैक करता हूँ, वेट, हाँ आई विल एड इट बैक हियर, करेक्ट। नाउ टेल मी, इफ आई एड बैक डेप्रिसिएशन हियर, हैव आई रीच चेक पॉइंट 3 विदाउट एनी टेंशन? हाँ यस सर। एंड इज दिस नाउ? अब देखो एक मिनट, चेक पॉइंट 3 से डेस्टिनेशन पे चलते क्या? चेक पॉइंट 3 से डेस्टिनेशन पे चलते क्या? देखो जरा, ये इधर और ये डायरेक्ट रीशफल्ड में सेम ही है क्या बाबा? ये देखो, ये सेम है। हाँ सेम है नेट सर। ऑपरेटिंग कैश फ्लो तक पहुंचने के लिए ही एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। ये ओके है क्या आपको? मेरे को ये पूछना है। Yes, sir. Yes, sir. सिंचना, व्हाट डू यू से? Yes, sir. डायरेक्ट इनडायरेक्ट? जिया, क्या लगता है? यस सर। ओके, देख लो। सर तो आपका जो टीएस ऑन टीएडी है उसका इम्पैक्ट कैसे आया है इनडायरेक्ट में? हाँ, टीएस ऑन टीएडी आएगा ही नहीं ना? नहीं, टीएस ऑन टीडी विल इट कम इन इनडायरेक्ट मेथड एवर? नहीं सर, इसमें नहीं। तो हम लोग पूरा डेप्रिसिएशन ले लिए हैं। यू आर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन हियर, हाँ यस सर। राइट? तो हैव यू तो पर डिडक्टेड उसका टैक्स डेप्रिसिएशन फ्रॉम इम्पैक्ट द, आप ले रहे हैं ना? अरे अरे राजा, व्हेन आई से 30, हाँ राइट, on हाँ 30 I am paying tax. Have I already deducted depreciation here? हाँ ऊपर But किया have I हुआ है। deducted depreciation here? नो सर। No. So I have taken the impact by TS on ओके TD. यहाँ मैंने क्या ओके। किया, टैक्स पे कर दिया एंड देन हाँ नॉन कैश एक्सपेंस से ना वो सर तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। बेसिकली आप उधर ही आ रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आ I रहे am हैं। coming to the same point, but there are two ways of coming to that same point. ओके One is going by the profitability approach, coming to PBIT, deducting tax, बराबर है, हाँ going net operating profit after tax and then adding back depreciation, going to cash flow. या तो सारा कैश फ्लो अप्रोच यूज करूंगा, डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं करूंगा एंड टीएस ऑन टीएडी डिडक्ट करूंगा, यानी टीएस ऑन टीएडी आई विल टेक। बोथ द अप्रोचेस टेक मी टू व्हाट डेस्टिनेशन? टेल मी। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर नेट टैक्स। ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बट सर इतना आप इस पे जोर क्यों दे रहे? बराबर है ना? वाई आर यू गिविंग सो मच? व्हाट, आ जाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर है, क्या बोला है? व्हाट इज दिस? टेल मी। After depreciation Profit and before operating tax. expenses being deducted. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या है ये? क्या है? तो जिसको मोस्ट फेमसली एबिटा बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। ये देखो, फिर से दिखाना ना। ये रहा ना, ईबीआईटी है ना ये सर? ईबीआईटी, पीबीआईटी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। हाँ But here it has been given as after operating costs and tax आफ्टर will be ऑपरेटिंग deducted. कॉस्ट मीन्स व्हाट बाबा? ऑल द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ वेरिएबल, फिक्स्ड, अदर एंड ऑल्सो डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट? पीबीआईटी, पीबीटी और पीएटी। सर वही कंफ्यूजन था। PBI. पीबीआईटी, करेक्ट? ईबीआईटी सर वही बोल रहे हैं। हाँ, ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिटर्न, व्हाट इज इट? पीबीआईटी, बराबर है? ओके सर। आ जाओ एक मिनट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरीवेयर इज व्हाट? पीबीआईटी, बराबर है ना? तो किधर भी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला, व्हाट विल योर ब्रेन से? आफ्टर टैक्स वाला रहे। आफ्टर टैक्स। अरे राजा, अरे सर वो बिफोर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज व्हाट? पीबीआईटी, हाँ व्हाट इज हाँ इट? यस सर, पीबीआईटी बराबर है लिख सर। ले भाई, लिख लो लिख लो, टेंशन मांगता है नहीं। पीबीआईटी, इसको लिखो इधर, आ जाओ, राइट दिस डाउन, इनडायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच। सर हेडिंग क्या देना है?
वही बोला ना इधर ऊपर, नहीं नहीं, टैक्स हाँ प्लस डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, डायरेक्ट मेथड वर्सेस इनडायरेक्ट मेथड. This is called as ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट खाली बोला तो पीबीआईटी हैज टू बी व्हाट, पीबीआईटी. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला, राइट इट डाउन. चलो क्विकली, कोई बुक में नहीं मिलेगा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टर्मिनोलॉजीज. If this base is strong till the end, you will not have any problem. Tukmin, what do you say, Baba? Okay. Yes, sir. This is net operating cash flow before tax. This is net operating cash flow after tax. नहीं, वो मैंने नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बताया था, वो भी आफ्टर टैक्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये क्या है, लिखा ही है मैंने यहाँ पे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. क्या है ये, नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं. ये किसको नेट ऑपरेटिंग, हाँ स्टार किया देख, या पीबीआईटी या ईबीआईटी, बहुत सारे नाम है, बट ये सबसे फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस व्हाट टर्मिनोलॉजी है. देखा ना आपने, कितनी सारी जगह पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. अब आप ये लिखो, तब तक मैं आपके लिए एक बढ़िया कुछ और ढूंढ के भी रखता हूं. दिख रही है आप लोग स्क्रीन? नहीं नहीं सर, वो लिख रहे अभी. यस सर, दिख रहा है. स्क्रीन दिख रही ना? हाँ, हाँ हाँ, वो दिख रही. तो स्क्रीन रुक गया. रुक गया. ये लो मैडम, अब दिख रही है, कर दो. Also, I have a doubt. हाँ, So, even in indirect method, we are not going to do anything with the interest, right? विद द इंटरेस्ट, यस यस यस, इन बोथ द मेथड्स. इंटरेस्ट का तो कुछ प्ले है ही नहीं इन एनी विच एवर वे.
आप इधर इंटरेस्ट करके बोल सकते हो, ये इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी इग्नोर्ड, इंटरेस्ट इज इररिलेवेंट कैश फ्लो। क्या है? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एडेड ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके ना बाबा? Okay. Thank you. एनी विच एवर वे इररिलेवेंट है तो कुछ कंसिडर करना ही नहीं फॉर एनपीवी। हाँ, आगे जाके अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है तो फिर इंटरेस्ट ले सकते क्या? जहां प्रॉफिट कैलकुलेट करने पूछा है वहां इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, बट अगर एनपीवी कैलकुलेट करने बोला तो इंटरेस्ट लोगे क्या? No. नहीं। बट मैंने बोला प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो Then we'll take interest. इज इट रिलेवेंट? क्योंकि प्रॉफिट में तो डिडक्ट होता है क्या इंटरेस्ट? बोलो। प्रॉफिट में Yes. होता है ना। प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करने बोला तो लोगे, बट ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनपीवी के लिए कर रहे हैं क्या? सर सर मेरे को प्रॉफिट वाला समझा तो नहीं, आप बिजनेस बोलना क्या वैल्यूएशन में चाहते हो? आएगा। क्या? सर प्रॉफिट वाला तो बिजनेस वैल्यूएशन में वो आएगा। बिजनेस वैल्यूएशन, बट बोल रहा हूं अगर कोई आपको बोले प्रॉफिट कैलकुलेट करो, ठीक है, सुनो, तो क्या इंटरेस्ट डिडक्ट होगा पीबीआईटी वगैरह में से पहले? होगा ना Yes. सर, होगा। प्रॉफिट वाले बट में अगर मैं होगा। आपको बोलूं एक मिनट एनपीवी के लिए कैश फ्लो एनालिसिस करो, इन दैट केस नहीं नहीं, तो नहीं होगा। ठीक है सर। इधर तो दोनों सिचुएशन में मैं नहीं कर रहा। क्यों? लिख लो, फॉर एनपीवी एनालिसिस, इररिलेवेंट कैश फ्लो फॉर एनपीवी एनालिसिस। बट वही इंटरेस्ट इफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड, या छोड़ो वो इधर मत लिखो, कंफ्यूज हो जाएगा, आगे देखेंगे जब होगा तब लिख लेंगे। क्या मोहित जी, क्या लग रहा है? इतना क्लैरिटी होना चाहिए क्या? हाँ जी सर। जरूरी है, उसके बगैर एएफएम के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। अब एक मिनट, मैं लिखने को टाइम देता, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। देखो भाई, ये क्या बोला है, ये क्या बोला है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। एक मिनट, ये देखते क्या जरा, ये क्या है, ट्रिपल टाइम कंपनी, देखो क्या बोला उसने, और प्रेडिक्टेड ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बोले, मतलब क्या? सर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एडजस्टेड और नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड, अरविंद, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। Inflation राइट। considered. और ये नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर मार्केटिंग कॉस्ट बोला है, मतलब क्या? You have to include, you have to deduct हाँ, marketing cost. डिडक्ट मार्केटिंग कॉस्ट। उसके बाद क्या निकलेगा, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर मार्केटिंग कॉस्ट। मतलब अगर मैं नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बोल रहा हूं तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो चुका होगा या डिडक्ट नहीं हुआ होगा, सोच के बोलना। हो चुका हो रहेगा जाता सर। है। हो जाता है पक्का? ना, पहले ही हो जाता है Yes सर। sir. पक्का? हाँ सर। देख लो भाई। Sir, cash flow is हाँ, So cash flow में Clear? depreciation minus होता है। क्या बोले? सर Cash डिपेंड flow करेगा से ना थोड़ी प्रॉफिट depreciation लिखेंगे। minus हाँ, करते हैं। कैश में डेप्रिसिएशन माइनस होता है या नहीं होता है? अरे नहीं नहीं होता होगा है। सर। यानी यहाँ आपको टीएस ऑन टीएडी यानी डायरेक्ट मेथड से जाना पड़ेगा या इनडायरेक्ट मेथड से? कौन सी गली से जाओगे? Direct से सर। ये क्या है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स है ना, उसमें भी क्या बोला उसने, एक कॉस्ट है वो अलग है, यानी इसके पहले का है वो, कंट्रीब्यूशन के नीचे कुछ थोड़ा कॉस्ट माइनस हुआ है एंड अदर मार्केटिंग कॉस्ट है रिमेनिंग। बराबर बोल रहा हूं क्या? यानी देखो इधर डेप्रिसिएशन के डिटेल दिए क्या, देखो। सर तो आप Is बोलना the- चाहते हो कि डायरेक्ट मेथड से करेंगे आप? हाँ, बट कैन यू डू बाय इनडायरेक्ट मेथड ऑल्सो? करने का तो कर सकते हैं, बट इनडायरेक्ट मेथड से चलेगा ही नहीं। यानी दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है क्या, डायरेक्ट सर पर आप रीशफल्ड कर सकते हो ना, आप बाद में कर डेप्रिसिएशन सकते। ऐड प्रॉफिट कर कहाँ देना दिए, ना। लेकिन दे ना प्रॉफिट, देख देख क्वेश्चन में दिए क्या प्रॉफिट? नहीं, प्रॉफिट नहीं दिया है, बात फिर सही है कैसे आपका, करेंगे? कैश फ्लोज दिए हुए। हाँ, डेप्रिसिएशन माइनस करके काम कर सकता है क्या? कर सकता है, करने का तो कर सकता है, बट डायरेक्ट मेथड से करो तो भी अच्छा है। इसका आंसर डायरेक्ट मेथड से ही है, इसलिए बोल रहा हूं। ये देखो इधर डेप्रिसिएशन के डिटेल दिए क्या, देखो। बराबर है क्या? चलो बढ़िया। तो आर यू ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्हाट मेथड टू यूज, क्या वर्डिंग है उसके हिसाब से विल यू हैव टू चेंज द कोर्स ऑफ योर क्वेश्चन सॉल्विंग, टेल मी। हाँ, हैव अ लुक, ये तो एम्बरले बताया मैंने। एम्बरले क्या था, समवन वाज आस्किंग, आई थिंक ईहा वाज आस्किंग, यही था क्या बेटा?
दिस इज व्हाट, टेल मी, पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। इसके नीचे क्या आएगा डायरेक्ट, बोलो। तीन चीजें आती, पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। वेयर इज पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इन एक्सेल, हैव अ लुक। Check point 2. Check. हाँ, इधर Yes, sir. रीशफल्ड में 3, चेक पॉइंट 2 बराबर, रीशफल्ड में चेक पॉइंट 2 और इनडायरेक्ट में चेक पॉइंट 3 Check point 3. बराबर है क्या। हम्म। ये जब तक आप ना एक क्वेश्चन दोनों से सॉल्व नहीं करोगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगा, बट मैंने अभी आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। ओके, कि टीएस ऑन टीएडी कब कैलकुलेट करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी विल डू इट, डोंट वरी, थोड़ा राइट। कंफ्यूजन अभी हो रहा है। हाँ, मे बी क्लैरिटी नहीं रहेगा, वंस वी डू अ क्वेश्चन क्लैरिटी विल कम अप, ठीक है। ओके सर। ओके, आ जाओ। चल, नाउ कमिंग बैक टू व्हाट। सर जब हम पोस्ट टैक्स बोल रहे हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं ना कि हमने जो टीएस और टीडी वाला वो पार्ट भी हमने कवर कर लिया उसी में। हाँ, एवरीथिंग इज कवर्ड। व्हेन आई से पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मींस व्हाट, आफ्टर टैक्स ही है ना वो। सब कुछ हो गया, टैक्स वैक्स पे हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सब कुछ हो गया। एक क्वेश्चन करेंगे ना उसके बाद और क्लैरिटी, मे बी राइट नाउ आल्सो देयर माइट बी सम सर कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन राइट, वो। बट वंस यू डू अ क्वेश्चन इट विल ऑल गेट क्लियर। आ ओके जाओ। सर। नाउ देयर आर 4 डेप्रिसिएशन मेथड्स। ये टैक्स में तो आप ओके क्या, पहले टैक्स ले लेता, टैक्स का टाइमिंग, रुको रुको, टैक्स का टाइमिंग रहने दो, पहले अपन डेप्रिसिएशन एंड टीएस ऑन टीडी। डेप्रिसिएशन एंड टीएस ऑन टीडी में हाउ मेनी मेथड्स हैव आई रोट और हैव वी रोट, बोलो। डब्ल्यूडीवी, एसएलएम, ठीक है, आ जाओ। एग्जांपल डब्ल्यूडीवी, company A has a machine which has a life of 5 years and the which has a life of 5 years. Initial investment is equal to 500,000. Depreciation allowable on WDV method 25% per annum. Scrap value 54,000. Calculate. अब देखो कैसे लिख रहा हूं, राइट। अगर मेरे को डायरेक्ट मेथड से करना, सॉरी, हाँ डायरेक्ट से करना, तो आई विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट, टीएस ऑन टीएडी। एंड इफ इनडायरेक्ट से करना तो व्हाट आई विल हैव टू कैलकुलेट, डू आई नीड इनडायरेक्ट में, डू आई नीड टीएस ऑन टीएडी और ओनली आई नीड डेप्रिसिएशन, ओनली डेप्रिसिएशन। बताता मैं आपको, टेंशन मत लो, दोनों एक ही वर्किंग नोट में हो जाते हैं, तो मेरे को उसका टेंशन नहीं, राइट। आ जा, और कुछ बताया कह रहे स्क्रैप वैल्यू, हाँ इसमें कभी कभी लिखा होता है बैलेंसिंग चार्ज और बैलेंसिंग अलाउंस, वही है ना, डब्ल्यूडीवी मेथड ही है। हाँ, बैलेंसिंग अलाउंस इज अवेलेबल टू कंपनी। आ जाओ, हाउ डू यू डू दिस, पर्टिकुलर्स 0 1 2 3 4 and 5, okay। आ जाओ, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी टेल मी, 500,000। depreciation, at what rate will you take depreciation, at 25% on WDV, so first year it will be 25% of this. Closing WDV, how much is closing WDV, this minus this, then you have what, opening WDV of next year. Next year mein how much will be depreciation, this much depreciation, correct. Then third year, fourth year, 25%, this minus this,
बोलो. अब you have what? Scrap value. How much is the scrap value at the end of 5th year? 54. Now see, logic of what? Depreciation and TS on TAD in the last year. Correct है? Last year का depreciation का let's have a look at that. थोड़ा सा hear me out. Okay, what I'm trying to say. Last year में 158,203 is the balance of your asset. And last day before closing the account, you have sold the asset for 54,000. Sold the asset for what value? 54,000. 158 ka balance, 54,000 selling price. Will there be any closing WDV if you have sold the asset? First, tell me that. sir. No, sir. No closing WDV, zero. Now you have sold an asset which has a value of 158,203 for 54,000. That means, is there a loss on sale or a profit on sale? Loss tax Loss. tax shield मिलेगा sir. And see, if there is a loss will go where? P&L. Yeah. P&L. P&L So loss on जाएगा. sale of asset. Balancing charge. It is called as balancing allowance. It allows you to have extra expenses. Balancing allowance. Debit it to profit and loss account. And because of this, what will happen? Tell me. Will your profit increase or profit decrease? Tell me. Decrease. Decrease. If profit goes down or profit decreases, do you save tax or do you pay extra tax? Save. Save Save tax. tax on it. Makes sense? Have a look. Any problem here? But एक second. Same question. एक second. Wait. I'll calculate tax shield. Tax rate also has to be given, no? Tax rate is equal to 30%. Okay. So first, let us calculate tax shield. How much is tax shield on tax allowable depreciation? बोलो. How much is tax shield on tax allowable depreciation? हाँ, उसमें भी क्या है? Paid in same year, paid in arrears. Let's say paid in same year. Correct? Tell me. Tax is paid in the same year means what? On this 125,000 you will save 30% in the same year. इसमें कोई doubt? Tell me. But what if this is paid in same year? Correct? What if it was not paid in the same year? Then what you would do? Next year. Yeah. तो क्या होता है? एक साल आ गया था, उसमें कोई doubt? We have No, done sir. this somewhere in FM, but I don't know whether you all know it. Now see, one more question. Wait. Usually we won't pay tax on the same year. We pay it in the next year. See, if Usually in paid in same year, we paid in next year. Correct? चलो आ जाओ. In that case, what would have happened? Tell me. How would this shift? Tell me. This would shift 1 year ahead. Yes sir. 2, 3, 4. 6th year करेंगे after year. देख लो भाई. ओके है क्या? If it was paid in arrears, कोई टेंशन? और नेक्स्ट ईयर भी बोलते हैं इसको या अरियर्स भी बोलते हैं. बोथ वर्डिंग्स आर ओके. ओके है क्या? Yes sir. This is okay. I'm not much concerned about this. Are you okay with loss? Instead of loss, if there was profit, what you would have done? Tell me. Instead of loss. Instead of loss. 1 minute. I'll change the question. Correct? तो प्रॉफिट पे टैक्स भी लगेगा. I'll change the question. No. So instead of 54,000, if this was 300,000, then what would have happened? Bolo. Scrap value 300,000. In that case, is this a profit or is this a loss on sale? Tell me. Profit है sir. This is profit on sale. Correct? Is it balancing allowance or is it called balancing charge? Charge.
It will charge your profit. That means will it be debited to P&L or credited to P&L? Credited to P&L. And profit will go down or profit will go up? Increase. Will it save tax or will you have to pay extra tax? Extra tax. Pay tax. Extra tax payable on it. देख लो भाई. चार्ज मतलब P&L. Charge मतलब क्या? It is creating a charge on the profit. Means what? Increasing the profit or decreasing the profit? मेरे को पहले लगता था वो चार्ज मतलब P&L में expense out. Allowance means what? I allow you certain expenses. Charge means what? I'm charging with certain what? Charging मतलब credit कर रहा है P&L में तो profit increase हो रहा है और allowance मतलब expense. यानी इधर what is happening? Are you paying tax or are you paying tax? See, here you are saving tax when it is positive. Here what is happening? Paying or saving? Paying extra tax. These 4 years you are saving. Okay क्या sir? Profit का इतना कुछ. I have not seen profit come up in this one. Profit. Not even a single question ever has come up on this. But that makes it more enticing for the examiner to ask in exam, which has not been asked yet. Examiner would want to ask something like that only, no? Correct. Any problem with the WDV? हाँ. Sir, can we come to that the RES method? This one? In this RES method, usually we will pay tax in the next year only. Next so why year, we yes. are calling it arrears? We are See, paying it on arrears due is basically outstanding, or you could say arrears means what? First year ka tax I will pay in second year. Arrears means what? हाँ. But when it says cash flow in arrears, that also is one part, right? When it says cash flows in advance or arrears, we'll write a note on that. Okay, remind me at the end. Cash flows in arrears मैं बोलूँ अगर, right? So it is at the end of the year. Cash flow in advance बोलूँ, correct? So it will be at the start of the year. But if I say tax in advance, right, means same year. When I say tax in arrears, means next year. Arrears means what? I calculated the whole tax at the end of the year and paid the tax in the next year. That is the logic of arrears. But when I say I'm going to pay you 1,000 in arrears, again I'm saying pay you 1,000 in arrears means at the end of the year. We'll write that small note. I know where you are going with this. Okay. Yes, sir. Yes, sir. देख लो. Okay क्या? Chinchana, what do you say? Make sense or no? Yes, sir. Yes. Hey everybody. नेहा क्या लगता है? नेहल क्या लगता है बेटा? समझ रहे? दिमाग में घुस रहा है? या संडे फीवर है? हाँ संडे सर। फीवर. जाना है आज किधर घूमने? घूमने जाना है क्या किधर? चलो घूमने चलते हैं. किधर है आज? क्या सीन क्या है अभी आज? ऐसे मतलब संडेज को व्हाट डू यू डू नाउ? वर्किंग मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे, देन संडे को व्हाट डू यू डू? रिलैक्स या गोइंग आउट? क्या सीन होता है? All those people who are working. Mohit ji, what do you do on a Sunday afternoon अभी? Sir, I usually go out. Usually go out ना. ऐसा ही होता है. हमारा भी ऐसा ही है. Sleep. तू सोता ही रहता है. तनिष तो क्या है? टेंशन फ्री आदमी, राइट? FM वाला ही है सर ये सर. तनिष FM अपना वाला ही है ना वो. हाँ वही है. चल WDV हो गया. नाउ सी देखो, अगर मैं आपको बोलूं डायरेक्ट मेथड यूज करना है, आई एम सेइंग व्हाट, वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्ट मेथड, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ये डेप्रिसिएशन यूज करेंगे या TS ऑन TAD यूज करेंगे? टेल मी. TS on TAD सर डायरेक्ट मेथड में. बट इनडायरेक्ट बोलूं तो डेप्रिसिएशन एक बार डिडक्ट भी करोगे Add back. और और वापस एड add बैक back. भी करोगे. बराबर है क्या? ठीक है, चलो ये ओके है. उसके बाद एक और स्टेप आगे चलो. अब WDV की जगह पे नॉर्मल SLM करते हैं. ठीक. अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर चेंज करके इनडायरेक्ट मेथड इधर है ना, 1 बोलता हूं सेम ईयर, फिर बोलता हूं 2 अर्लियर, यानी दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे इधर.
हाँ, टीएस ऑन टीएडी में चेंज इन करंट और नेक्स्ट ईयर विल डेप्रिसिएशन चेंज अगर टैक्स इज पेड इन अरियर्स. सुनो, अगेन आई एम रिपीटिंग, टैक्स इज पेड इन अरियर्स. टीएस ऑन टीएडी में चेंज, बट विल द डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 1 शिफ्ट टू ईयर 2? नो सर. नहीं ईयर 2 सर, का ऐसा ईयर, कैसे हाँ, बोल अरे रहे हाँ, हो नहीं पूछ रहा हूँ भाई, ऐसे क्या है? आप कंफ्यूज कर हाँ. रहे हो. अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये ना अभी आपको रियलाइज नहीं होगा. ये कब रियलाइज होगा? अगर आपने 2-4 क्वेश्चन किए, उसमें किधर भी नहीं है, बराबर है, एग्जाम में आ गया, या एग्जाम में आप एकदम पैनिक हो गए. आई हैड अ स्टूडेंट एग्जाम में फुल पैनिक मेरे साथ. आई रिमेम्बर डूइंग इट, मतलब उसको मिला था मैं लास्ट क्वार्टर, फुल पैनिक एग्जाम में. सर मेरा हो ही नहीं पाया, पहला 50 मार्क का क्वेश्चन देख के. हाँ, आई टोल्ड यू ना, हाँ मैं भूल जाऊं उसके पहले. अभी बहुत लोग बोल रहे, क्या बोल रहे, सर पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया है. पहले 25 मार्क के लिए फर्स्ट व्हाट यूज्ड टू हैपन, दैट योर रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, हाँ मैं बता देता हूं, रिस्क मैनेजमेंट पार्ट ये वाला, ये रिस्क मैनेजमेंट, बराबर है. फॉरेक्स रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेक्ट, यूज्ड टू कम फॉर अ 25 मार्कर क्वेश्चन, सेक्शन बी, possibly, right? But now the examiner is experimenting with you and your brain. Q. Recently he has shifted to what? Using risk management in first section A question with foreign NPV or some other question. Question कतई easy होता है, एकदम easy, right? But the problem with the question, right, is that you are not very well versed. मैंने करा है क्वेश्चन, आप पूछो, whoever was there in the last batch, right? मैंने पूरे क्वेश्चन करा है क्लास में, right? बट प्रॉब्लम क्या है, 25 मार्क के इतने सारे क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चंस. 1 मिनट आप देखो इधर जरा, कम टू दिस पार्ट. कैन यू सी ट्रेजरी एंड एडवांस रिस्क मैनेजमेंट रिसेंटली कितने क्वेश्चन आए? मोहनी, नॉर्दनी, ये 2 रिसेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं 24. नीचे आ जाओ इधर, ये वाले देखो, इसमें आपको रिसेंट क्वेश्चन दिख रहे क्या? ये लॉग और अबेटा फॉल, उसके सिवा कुछ क्वेश्चन दिख रहे क्या रिसेंट में, लास्ट 3 इयर्स में, लास्ट 2 to 3 इयर्स, 2 इयर्स बोलूंगा मैं स्पेसिफिकली, 1.5 2 इयर्स से ट्रेजरी एंड एडवांस रिस्क मैनेजमेंट के 50 मार्कर क्वेश्चन आ रहे. ये ऐसे मोहनी नॉर्दनी जैसे. मैं अभी बोल रहा हूं आपको, रिस्क मैनेजमेंट आपको लगता होगा दैट सेक्शन बी में आएगा 25 मार्क का, बट कहीं पे भी आ सकता. मैं रिस्क मैनेजमेंट में भी बोलूंगा. मैं अभी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसी जो चीजें है ना, मैंने अभी पूछा टैक्स अगर अरियर्स में तो क्या, कैश फ्लो अगर अरियर्स में क्या, ये लिखा है नोट्स में ना, तो इट में क्लिक इन द एग्जाम. नहीं तो क्या है, ऐसे निकल जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रिट एट ऑल. अभी मैं नहीं बताता एस्टिमेटेड, प्रेडिक्टेड, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लो. अरे 200% मिस्टेक होती तुम्हारी, यू वुड हैव लॉस्ट मार्क्स देयर 100%. आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करते ही कैश फ्लो को, तो उतना ध्यान रखना. आ जाओ आ जाओ 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 जाओ. डेप्रिसिएशन अलाउएबल ऑन SLM basis, scrap value 50,000. अब ये हो गया SLM, बट ये भी मैंने बहुत ज्यादा आते हुए देखा नहीं, ओनली SLM. आ जाओ, हाउ विल यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, बोलो. हाउ डू यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाबा, टेल मी ऑन SLM, बोलो. इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू या माइनस स्क्रैप वैल्यू? Minus scrap value divided Minus by scrap value useful divided life. by use. Useful life. Correct. Have a look. Will it change every year? No sir, same ही रहेगा. Will you have any kind of what? बोलो. Will you have any kind of what? Tell me. Profit or loss on sale, और लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन ही जाएगा, बोलो.
It will be pure depreciation. ये profit and loss नहीं है. This will be depreciation only. That is how it is. इसमें even the TS on TAD will be same every year. इधर same year और नीचे कर देता हूँ arrears. Correct? Arrears होता तो this 27,000. This would be something like this. This into 30% till 6th year. Okay, क्या? But this method is now old. This method is what? Not asked at all in exam now. Which method is asked, sir? Then आ जाओ. They ask you something like this. देख लो, इसमें बैलेंसिंग चार्ज बैलेंसिंग अलाउंस आएगा. हैव अ लुक एट इट. ठीक है क्या? अब बोलो हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ईयर. व्हाट इज द डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर? व्हाट इज द डेप्रिसिएशन इन सेकंड ईयर? व्हाट इज द डेप्रिसिएशन इन थर्ड ईयर? बोलो. ये 25 है, 25 नहीं ले सकते. 5 ईयर है ना. 15% लो. हाँ बोलो. व्हाट तो विल बी 5 द lakhs पे 15% लगेगा. at 15%? Okay. So this सेम ही रहेगा into डेप्रिसिएशन. 15%. This will be same every year. Same every year. Yes. Yes. And how much will be the last year में? Will there be balancing charge or balancing allowance? Yes. Yes, sir. So last year में क्या होगा? This minus this. This is balancing charge. This is what loss. तो ये loss वाला लेके आते हैं ना यहाँ से. ये नहीं रुको रे. इधर. Loss on sale of asset, balancing allowance, debited to profit and loss account, right? बराबर है क्या रे? Something new that you have learned. FM में अब मैं नए बैचेस में तो FM में भी पढ़ाना शुरू कर दिया, because it is examiner's favorite hobby to do what? You know, no? In FM what is happening now? You were in a easier time, right? अब FM में क्या कर रहा है? AFM के क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है. AFM में SLM at 15% है ना. ये एक बार आपने बताया था FM में. मैंने बताया. तुम्हारे बैच में अभी रिसेंटली बताया. जो जिन्होंने पुराना किया, मोहित जी ने किया है, शर्वणी ने किया है. हाँ सर, तब उसमें वो नहीं था. तब नहीं था. अब तो मैं ना ये आपको इन्फ्लेशन भी करवाया ना, राइट? वो भी सारा इन्फ्लेशन ऐसे कैसा कॉपी पेस्ट वहां पड़ा था. किधर? FM में. FM में सेम ही पढ़ा है सर. क्योंकि एग्जामिनर बहुत डेंजर है. ही कैन आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. देख लो भाई, ये ओके है क्या? Depreciation on SLM at 15%. Makes sense? Does not make sense. Last but not the least, correct, is your 100% depreciation. तो फर्स्ट ईयर में पूरा मिल जाए. At 100% immediately. अब इधर क्या है ना, स्क्रैप वैल्यू वैसे दी नहीं रहती, बट क्या मालूम, मेरे को ऐसा आई हैव अ फीलिंग दैट मे बी कहीं आ जाए स्क्रैप वैल्यू, तो एक क्वेश्चन उसका भी ले लेंगे. नो स्क्रैप वैल्यू, नो लॉस ऑन एसेट, नथिंग. करेक्ट, कुछ भी नहीं. ये आ गया फर्स्ट साल में. बट व्हाट इफ एक मिनट, इसमें स्क्रैप वैल्यू आई तो क्या? एक क्वेश्चन कहीं तो देखा हुआ याद आ रहा है. स्क्रैप वैल्यू 50,000. तो इस केस में क्या होगा? यू विल राइट 50,000. हैव यू रिसीव्ड 50,000? यस. ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? टेल मी दैट. प्रॉफिट होगा. जीरो इज द वैल्यू. जीरो इज द वैल्यू, तो प्रॉफिट होगा सर आपका. हाँ, तो इट विल बी व्हाट? अ बैलेंसिंग चार्ज. Zero is the value of the asset.
0 is the value of the asset. So this 50,000 will be nothing but profit on sale of asset. Not yet, never ever asked in exam. But क्या मालूम, मेरा दिल बोलता है कि किधर तो निकल के आ जाएगा. Any problem with any 100% depreciation, SLM basis पे depreciation, SLM at fixed percentage, WDV, normal SLM, paid in arrears, paid in same year, कोई टेंशन? बोलो 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 बोलो. Now only then what, एक लॉस बचा है और एक लास्ट वाला बचा है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट. लॉस सर एंड नीचे वर्किंग स्क्रॉल कैपिटल. कर दो. और कितना ऊपर नीचे? ऊपर ऊपर. हाँ. वो एसएलएम में एसएलएम का दिखा रहा है. ठीक है सर. सर जो लास्ट वाले उसमें आपने -15 क्यों लिखा है सबसे एंड में? ये टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स पे होगा ना सर, ये 50,000 पे डिप्रिसिएशन है ना भाई, ये प्रॉफिट है ना. ठीक है प्रॉफिट से एक्स्ट्रा टैक्स पे होगा ना. सर. आपने मेरे एसेट की वैल्यू 0 है, ठीक है, राइट और मैंने 50,000 में बेच दी, मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया सर. प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट हो गया यानी इससे टैक्स बढ़ेगा या टैक्स कम होगा? बढ़ेगा सर. सर तो आप अलग कॉलम समझाने करके के क्यों नहीं लिए दिखा रहे? 50,000 ऊपर लिखा है ना, आइडली तो नीचे आ जाएगा ना वो. किधर? ये स्क्रैप वैल्यू ये रहा, 0 हो गया, मेरा ओपनिंग बैलेंस भी 0 है. देखो जनरली क्या करते हैं हम, आ जाओ, जनरली व्हाट डू वी डू, 158,000 इज योर ओपनिंग WDV, करेक्ट. यस. स्क्रैप वैल्यू 300,000, दोनों का डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पे. राइट, ठीक है सर. यहाँ पे मैंने वही किया, 0 इज माई ओपनिंग WDV, क्लोजिंग WDV 0, स्क्रैप वैल्यू 50,000, तो नेगेटिव 50,000 आ गया. ठीक है सर. ठीक है. Arvind, what do you say? Sir, understood. Understood. But we do questions, you will get more clarity. Okay. So what we will do, see, logically what you should do. Now when I give homework questions, okay, if you are able to solve it straight away, great. If you are not able to solve it, you come to all these sheets. Look at what kind of variant is asked in the question and try to emulate it. Correct? Chalo. Now, can I go one more step ahead? Yes sir. Yes. Sir, one doubt. Huh. So, sir, in the straight line that previously before, Straight line at fixed percentage. why is that 1,50,000 balancing allowance? Because in the last year, see, in the last year, 200,000 is your opening balance, correct? Yes, and sir. you have sold the machine for how much? 50,000. 50,000. So last year, how much is there a profit or a loss on sale of asset? Loss. Because is it normal SLM mein you will not have profit or loss in the last year because depreciation debited and scrap value is taken care in the formula. But here is it SLM plus fixed percentage? Yes. सर Fixed नॉर्मल percentage एसएलएम on वाले में भी बताना ना आपके ऊपर वो एग्जैक्टली normal SLM देखो यहाँ पे 90 will be there for all 5 years. तो इसमें नहीं ये होगा Is क्या? there a loss or it is only depreciation that is going to the books of accounts? Depreciation. Same amount. Either depreciation same amount जा रही क्या? नहीं. सर पर ऊपर डेप्रिसिएशन जा रही है ऐसा आप बोल रहे हो तो ऐसा इसमें नहीं, प्रॉफिट और लॉस है, बट इट इज मैं व्हाट वही बोल रहा था, सेम मैं वही सोच 90,000 रहा था, अमाउंट, इसलिए मैं पूछा नहीं. सेम 90,000 अमाउंट. सी दिस इज ऑल्सो बेसिकली लॉस, बट डू यू वांट टू से इट इज लॉस और डू यू वांट टू से इट इज द 5-year प्लान्ड डेप्रिसिएशन? सर आपका अगर ये स्क्रैप वैल्यू अगर चेंज होता तो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट भी चेंज होगा. इट विल बी ये सेम वाले फॉर में ऑल 5 years. नहीं मैं बोल रहा अगर इधर 60,000 होता हाँ तो स्क्रैप चेंज वैल्यू. होता, कुछ नहीं, यहाँ पे 60,000. हाँ ओके तो वो पूरा ठीक है सर. इट विल बी व्हाट 88,000 ऑल वेयर और इधर 60,000. ओके सर ठीक है. बराबर है क्या? यस सर. Everybody. What do you say, Arvind? Correct or not? I Yes, want to sir. say that this is balancing allowance, correct? But what does basic logic prevail here? That it is 90,000 every year. So you do whatever you want to do.
When balancing charge or balancing allowance will come? When there is a loss and it is different from your what? Depreciation method that you are doing. Correct? That is how it is. Have a look. Sukhmin, what do you say? Sinchana, Sharwani, welcome to AFM. Right. We did a lot of questions today, sir. अरे बहुत क्वेश्चन, मतलब आप देखोगे ना ये जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, अभी आपको लग रहा क्या छोटे छोटे क्वेश्चन है, but when you do big questions, these are all small parts of that question. Everywhere you have to take small decisions about what to do in the question, and these small questions will help you do or take those decisions. I've done this too many times. ठीक है, I have taught. में मेरे को सर यही ऐसा ही क्वेश्चन आया था, 80% आया मेरे को, मैं चेक किया था सेक्शन सी में, ये सब मेथड फॉलो करके. Yes, I am telling you right now, you can do as much as you want, you know. Sir, we know everything, we conceptually we know everything, but till you don't what? Practice. There is nothing that you can do without practice. If you don't practice questions, right, it is a waste of time. आ जाओ जरा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लास्ट पार्ट, देन वी डू अ क्वेश्चन. ओके, आ जाओ जरा. फर्स्ट राइट डाउन वर्किंग कैपिटल पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? आते क्या? लिख लो पहले, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. डे टू डे वर्किंग के लिए वॉट एवर मनी यू रिक्वायर, शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड. लिख लो एक बार, एक टेबल भी है, दोनों लिख लो, उसके बाद आई विल गो इनटू एक्सप्लेनेशन मोड. Once done, let me know. There's one more table that you need to draw. Working capital investment, basic understanding. Investment in non-fund. I am thinking of compiling notes. जैसे all these notes will compile in one place. मैं रेडी करके दूं पहले से तो चलेगा क्या? For next week these notes will be required, or you want to write? बोलो. How do you want to do it? रेडी करके दे दो ना सब. रेडी करके दे दो चलेगा? मैं तो बेस्ट है. I save a lot of time. बहुत ज्यादा बड़ा है क्या? सर, सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, जितना No, I'll give weekly notes. सेव करेंगे और सम सॉल्व करेंगे उतना बेटर रहेगा. वीकली नोट्स, सम तो सॉल्व करेंगे, वीकली नोट्स दे दूंगा. आई लीव स्पेसेस वेयर रिक्वायर्ड. देखते हैं, एक वीक करके देखते हैं नेक्स्ट वीक इफ आई गिव द नोट्स. मैंने लास्ट बैच में ट्राई किया था,
गिविंग नोट्स, बट सबको सब कुछ बाउंसर जा रहा था, तो आई स्टॉप्ड। सर आप लिखवाते वही आपकी स्पेशलिटी है। वो दिस इज व्हाट आई हर्ड, बट देन थोड़ा वही सा सर, टाइम ज्यादा बाकी लगता है, जगह कहीं मिलेगा नहीं ऐसा। थोड़ा सा टाइम, देन दैट टाइम इशू कम्स अप। एक जगह कुछ बचाने जाओ तो दूसरी जगह आई गेट कॉट, दूसरी जगह कुछ बचाने जाओ तो फिर बोलेंगे टाइम पे पोर्शन नहीं होता, फिर टाइम पे पोर्शन नहीं होता तो बोले नोट्स बहुत लिखाते, नोट्स बहुत कम किए तो बोलते नोट्स नहीं लिखाते। व्हाट कैन आई डू? अभी भी देखो, आप अगर मेरे को दिन में दो, ठीक है, 2-2 घंटे अगर हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास, राइट, तो और मैं अच्छे से आपका पोर्शन, और क्या है, स्विफ्टली आपका पोर्शन खत्म कर सकता हूँ। मेरा तो मानना है, देखो मेरे को ना ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा कर सकता हूँ, कैन आई डू समथिंग कि मैं सारा जो प्रैक्टिस है ना वो एंड में लेता, मतलब अभी क्या अपन मार्च चल रहा है, अप्रैल एंड तक पोर्शन पोर्शन खत्म कर देता और मई में सारे क्वेश्चन सॉल्विंग लेता, चलेगा क्या? हम्म, हाँ, नहीं सर, वो ना फिर ओ दिक्कत सर, याद ही नेहल को नहीं। पूछो, नेहल है क्या? नेहल, नेहल वैसे करूँ क्या? क्या सर? एंड में क्वेश्चन करता, पहले नहीं एकदम सर, जल्दी, करते सर रहो, नहीं साथ नहीं, में। एकदम जल्दी सिलेबस खत्म कर देता। सर आप ये दूसरे की कुछ पी के दूसरे आए हो क्या? इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं सर, मेरे को जितना याद है। क्या मुस्तफा? कुछ पी के आए क्या आज? अभी कुछ ऐसे ब्रेक में कुछ पी के आए क्या? देख मैं देखो क्या बोला, बहकी मैं बोला बहकी ना, बातें मत क्या करो। मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी खत्म करना, ठीक है, राइट, उसमें एक तो गड़बड़ कर नहीं सकता मैं, तुम लोग को मालूम है, मैं कभी भागम दौड़ी किया है पोर्शन के साथ ऐसे? मुस्तफा तो 2 बार बैठा मेरे साथ, क्या मुस्तफा? सब पहली बार जब आप एकदम एंड में लेके गए थे, याद है? एकदम एंड में, हाँ। एक हफ्ता पहले क्वेश्चन खत्म हुआ। हाँ, लेकिन तब सारे बच्चे पास हुए थे जिन जिन्होंने सीरियसली दिया। ये तू ही था ना वो, आई थिंक कितने अपने पहले इसको 4 बच्चे थे ना रे, हाँ, 4 थे। 4 या 5 एडमिशन थे, समीर, राइट? कौन था? समीर था, समीर का भी हो गया, फिर और कौन गर्वित था? था, समीर था और एक और बंदा था। गर्वित, समित, और एक था अपना, क्या उसका नाम भूल गया मैं। उसका लास्ट पेपर था। हाँ, गर्वित का सेकंड लास्ट पेपर था और ये था समीर का तो लास्ट पेपर था, ऐसे। तो सबका 60+ निकला था, बट वी हैड डन क्वाइट इन डिटेल, मतलब मैं ऑलमोस्ट उनके हर रोज, ऑलमोस्ट एवरी डे हैज टू टेक, तो 4 ही बच्चे थे ना, हैप्पी, राइट? तो आई हैव दोज नोट्स नाउ, दो मोर देन 300 पेजेस आई रिटन। वो तो और बहुत दूसरी लिखा था बुक ना में उसमें तो, उसमें तो बहुत लिखा उसमें था। तो एक तो वो नोट्स अभी भी है मेरे पास, उसमें है तीन क्या सौ तेरे पास? पेज का डायरी था वो तो पूरा मेरा, और अच्छा बड़ा डायरी था वो लिखा था। और एक दूसरी नोटबुक का आई गेस पाव कुछ लिखा होगा हाँ, कि 25-30 400 पेजेस पेज। होता है, 400 to 450 पेजेस। ये टाइम लास्ट टाइम तो कितना 200 दो मोर लास्ट देन टाइम टू बहुत हंड्रेड तुमको पेजेस का। दे दिया था ना मैंने नोट्स, हाँ। इसलिए यू डिसाइड, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट एकदम चकाचक पोर्शन होगा। ये लो, ये टेबल निकाल लो, सर आप लिखो वही अच्छा है। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, आप लिखो, बट क्या है, कुछ कुछ लोग रहते हैं, सर इतना डिटेल में क्यों जाते, लिखाते क्यों? मेरे को कोई टेंशन नहीं, आई एम रेडी टू पुट इन द नंबर ऑफ आवर्स। सबका लंच टाइम क्या टाइम पर रहता है रे, वर्किंग पीपल लंच टाइम? एक सर से दो 2 या 3। 2-3, हाँ वो फिक्स नहीं रहता ना, प्रॉब्लम हुआ है। सर मेरे कोई को लंच टाइम 4। फिक्स होता है क्या? नहीं ऐसा होता नहीं मैडम, पूछ रहा हूँ मैं तो। सर मैं तो जब वर्क फ्रॉम ऑफिस भी करती थी तो डेस्क के सामने ही खाना पड़ता था। अब वैसे ही ऑप्शन, कोई ऑप्शन है, हम भी वैसे ही करते हैं, 4 बजे। मैं तो कभी कभी, अब भी रिसेंटली तो 4 भी बज जाते, 3:30 भी बज जाते, 5 भी बज जाते, कभी कभी मैं लंच करना भी भूल जाता हूँ, इतने सारे सर काम में रहता अर्निंग्स है के या टाइम कोई पे क्लास हमारा में। भी यही होता है, लंच करना ही भूल जाते हैं।
लिखो, इस सारे के भी एक एक क्वेश्चन अपने पास है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, मल्टीपल रेट्स। ये एक थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है, मल्टीपल रेट्स वाला। फिर वर्किंग कैपिटल, हाँ डन। डन है, ओके। First, let us talk about working capital investment. Then we'll go into the Excel part. Third, fourth, fifth, I'm not very tensed or concerned about third, fourth, fifth. But first and second, aha, classic. उसमें भी second वाला जो है, a bit challenging for everybody. चलो, let's talk about working capital investment. What is working capital investment? बोलो, what do you know about working capital investment? Tell me. डे टू डे खर्चा करने के लिए पैसा Day to day लगता है। expenses, you require that money, right? That means, do you require it for short term or do you require it for long term? Short term, less than 12 months. Short term. You have done somewhere in FM a topic called as working capital management. What did you learn in that working capital management? Sir, we have account receivable, we have account payable, we have inventory, all those days and everything. Do you remember? Sir, Yes, if there sir. is a shortage, then there is something called as cash operating cycle. All those stuff, याद है? Account receivable days plus inventory days minus account payable days is the cash operating cycle or working capital cycle as they call it. इसमें कोई टेंशन किसी को? याद है? All Yes, these sir. things, Yes, sir. right? अब now what I want to say here is, basically I want to say that boss, if you are doing working capital investment, what you are doing? Working capital investment. It is loosely based on, right? Or I could say loosely based on day-to-day expenses. And generally, what you would do is, sir, I will do a sale of 100,000 in the next year, right? But I can do this sale only if I do. Now see, I have bought the machine, but will the machine work without any raw material? No, sir. Without the raw material, machine will not work. So, sir, I need raw material on credit. What do I need? Raw material on credit. If I have to do a 100,000 ka sale, I will require minimum 20% of this sale as the raw material investment in my business. With $20,000, no, sir, I can do a 100,000 sale ka production. I can start. If I take 20,000 from someone and start my business, right? I will have raw material. Now what will happen? Today I make the production, I sell it. Example there, I get 100,000. Next day again I need 20,000 to do my production, right? So every day 20,000 I will repay from that 100,000. I will repay 20,000 to that person. यानी एक मिनट के लिए समझो that you are taking loan every day. सुनो, morning में you take 20,000, you buy the raw material, you go to the shop, start production. Correct? 100,000 or 67 more expenses will be done. By the end of the day, you are able to do the 100,000 sale. हो गया 100,000 sale? But that person takes credit. What does he do? Credit. बराबर है ना? Credit. तो बोलता कल सुबह तुमको पैसा दूंगा. Morning you get the money. You repay the 20,000 you have taken. उसको बोलना यार आज के सेल के लिए वापस 20,000 चाहिए. Again take that 20,000. All the expenses that you have paid. मतलब देखो in a day, if I talk about day to day, एकदम क्या लिटरल बात करता. इन द मॉर्निंग यू टेक 20,000 लोन, ओके, फॉर रॉ मटेरियल. यू बाय द रॉ मटेरियल विद दिस, यू स्टार्ट द प्रोडक्शन प्लस 40,000 के अलग एक्सपेंसेस. लेट्स से यू हैव वर्कर्स वर्किंग विथ यू, जिसको आप क्या करते हैं 40,000 के एक्सपेंस करते. तो हाउ मच इज द एक्सपेंस नाउ? 40,000 एक्सपेंस भी है. आपने बोला आज नहीं, आज पूरा काम करोगे, कल सुबह पैसा मिलेगा. कब मिलेगा पैसा? कल सुबह. सुनो आराम से देखो,
उन्होंने बोला ठीक है 40,000, तो 60,000 इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. You sell this for 100,000. Correct or not? Sale. How much is the profit at the end of first day? 40,000. अब हुआ क्या, आपने ये लोन लिया था, लोन एक ही दिन के लिए लिया. कितने दिन के लिए? एक ही दिन के लिए. ये सेल वाला, दिस इज डे 1, ही गिव्स यू मनी, ही सेज कल पैसा दूंगा. when will you give money? Tomorrow. Day 2, 100,000 रिसीव. यू आर लाइक चलो बढ़िया, 20,000 लोन रीपेड. करेक्ट है. 40,000 पेड टू द एक्सपेंस, 40,000 इज माई प्रॉफिट, आई एम टेकिंग इट होम. ये एक साइकिल हो गई प्रोडक्शन की, समझ रहे हो. नेक्स्ट डे ये सब पैसा बांट दिया, बाद में वापस गए लोन वाले के पास, अरे वो रॉ मटेरियल के लिए 20,000 देते क्या प्लीज. वापस लोन लिया, 40,000 के एक्सपेंस, वी विल पे टुमारो. ऐसा डे टू डे खर्चा, 20,000 का लोन, यानी विद द 20,000 लोन, right, can you make a sale of 100,000? Yes. But did you require the money before starting the production or after completing the sale? Before starting. Before starting the production, if you don't buy the raw material with the loan or working capital investment amount, will you be able to do the production? No. So, 1 minute. If I am doing 0 to 1. Now see, basic assumption क्या है? Sir, all cash flows happen at the end of the year. ऐसा अपन basic assumption लेते हैं. But sale ऐसा होता क्या? That पूरा sale का amount will be received at the end of first year. Sale happens evenly throughout the year. Let's say you want to do a sale of 100,000 in the full year. Example, right? You want to do 100,000 का sale in the full year. 20% is the working capital investment that you require. Now tell me, sale तो you register year at the end of first year. बराबर है क्या? सेल का रजिस्टर करते हैं at the end of first year. बराबर है. But your working capital, it happens throughout the year. But working capital, can you take after the sale happens, or do you have to take before the sale happens? Tell me. Before. तो 100,000 अगर पूरे साल में हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल 20,000 will be required at the end of or at the start of first year or 0 year. Then only can you invest this and churn out a sale of 100,000, which then is done throughout the year, but for what convenience purpose, it is what return as done at the end of the year or cash received at the end of the year. ये लॉजिक ओके है क्या फॉर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट? सर ये फिर से बताते क्या बोलूं? अरे देखो ये तुमने स्टार्ट ऑफ द ईयर में लोन लिया, और सेल एंड ऑफ द डे पे किया. तो सेल कब आया? फर्स्ट ईयर के एंड पे. और लोन कब लिया? स्टार्ट ऑफ द ईयर पे. बराबर है क्या? वही लॉजिक है. सर तो आप बोल रहे हैं कि ऐसा सेल आपने, so whenever for 1 year I have to, first year I have to do the sale, will I do the working capital investment 0 year में या फर्स्ट ईयर में? अच्छा 0 ईयर में करेंगे. 0 ईयर में. देख लो भाई, दिस इज हाउ वर्किंग कैपिटल वर्क्स आउट. ठीक है, यू मस्ट हैव डन दिस सम और द अदर वेर टेल मी FM, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ व्यू इनटू इट. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट. So if I have to do it in Excel, आ जाओ जरा. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आते क्या? राइट डाउन एग्जाम्पल. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन, क्या है अपने पास? 4 है ना भाई. Just a second. So company A has the following sales.
चलो आ जा, सेल्स इन डॉलर्स। अब ना एक और चीज है, सुनो 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 सुनो, वन मोर थिंग दैट इज देयर, इंक्रीमेंटल का लॉजिक, दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखो, बिफोर वी गो अहेड, now you have invested 20,000, right? How this works out? Okay, let's say you are 0 year, first year, second year, third year, fourth year. You look at sales, let's say here I have given 500, correct? क्या क्या दिया भाई? 500, 512. Second feature of working capital investment is, once investment is done, right, that investment you will keep on churning, and you can keep on churning that much sale. Let's say I say that 20% of the sale is my working capital investment that I will need. So in the 0 year, I will wait here and see that, sir, in the first year, no, I need to do sale of how much? 500. So to churn out 500, I will have to invest 100 today. How much I will have to invest? 20%. 20% of 500. इसमें कोई डाउट है क्या? बोलो। ओके है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉजिक आई एम गोइंग नाउ मोर इनटू डिटेल। इधर तक कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब at the end of first year I am going, correct? At the end of first year. Now see how I am doing it. पहले इधर I even used to do something like this. Opening balance 0, invested amount, or working capital investment, better. Working capital investment is 100. ये इधर ये. And closing balance at the end of what? First year, right, is 100. Now opening balance at the end of first year. I am now planning for second year. Suno, I already have how much in my kitty? Tell me, invested in my working capital 100. And I can churn how much sale out of it? हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यूज नहीं हो जाएगा 100। यूज होगा ना, बट क्या होगा? मैंने यूज किया, मैं दूसरे दिन वापस पैसे लेने जाऊंगा, वापस यूज करूंगा, पैसे लेने जाऊंगा। यानी क्या होता रहेगा? 100 मेरे पास हमेशा रहेगा ही क्या? बोलो। ओके ओके। और 100 से मैं कितने का सेल कर सकता हूं? टेल मी। 100 के वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट से सेल कितने कर सकता हूं? 500 का। एवरीबडी ओके विद दैट? नाउ यू आर एट द फर्स्ट ईयर एंड कि चलो 500 का सेल हो गया, एंड यू आर चेकिंग, अरे सर अपने पास 100 है, सो आई कैन डू एटलीस्ट सेकेंड ईयर में 500 का सेल। हाउ मच का सेल? 500। बट इन नेक्स्ट ईयर हाउ मच सेल इज रिक्वायर्ड और हाउ मच सेल इज एक्सपेक्टेड? हाउ मच सेल इज एक्सपेक्टेड? बोलो। 512। तो क्या आपके पास 512 के जितना सेल करने जितना पैसा है या नहीं है? और यू कैन ओनली डू 500 का सेल, यू हैव मनी ओनली टू डू 500, सो हाउ मच शॉर्ट आर यू फॉर दैट एडिशनल 12? बोलो। टू अर्न और टू डू मोर 12 का सेल, 20% ऑफ 12 हैज टू बी व्हाट? Invested. So how much will you invest? 12 का 20%. Tell me how much is that? 2.4. 2.4. You will invest extra. So 102.4 is your closing balance now. Next year, आराम से you have now 102.4. But third year, what is the sale? देखो जरा क्वेश्चन में क्या दिया मैंने? 560. ए बाबा देखो, means sir now 560 required. I can do if you are waiting here. सर 512 का तो कामकाज है अपने पास, 48 एक्स्ट्रा करना, तो 48 का 20% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाउ मच विल यू हैव टू इन्वेस्ट? टेल मी। 9.6. 9.6 मींस व्हाट विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस? कितना? 112 हो जाएगा ना? 112 बराबर है क्या? यस। फिर थर्ड ईयर के एंड पे खड़े हो, फोर्थ ईयर में देख रहे हो, फोर्थ ईयर में कितना सेल है भाई? देखो 630 बराबर है क्या? 630 का सेल एक्सपेक्टेड है, बट आपके पास तो खाली गोला बारूद कितने का है? 560। यानी कितना एडिशनल करना है आपको? 70 का करना है, तो 70 का 20% और इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
कितना आ जाएगा, मतलब 14 और आ जाएगा, 112 है, 14 126 हो जाएगा। ओके क्या? यानी जितना आपको इंक्रीमेंटल सेल चाहिए उसका 20% क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम बोलो? नो सर। पहली बार ऐसा कुछ लॉजिक से याद रखा है क्या? सुखमीन मालूम है क्या ये लॉजिक? मुझे आइडिया बस है? एक चीज से कंफ्यूज हो रहा है कि जो हम्म 100 इन्वेस्ट कर दिया हमने ऑलरेडी, हम्म वो दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना जैसे? दोबारा क्यों इन्वेस्ट करना? देखो मैं आपको बोलता हूं, मैंने आपको 100 दिया, जाओ बिजनेस करो, बराबर है। वो 100 से आप जो बिजनेस करोगे उससे 500 का सेल आ रहा है। अब अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हर 3 महीने में 4 महीने में रिन्यू होता है, बराबर है। यानी मैं आपको बोलूं आपके 100 है, हाँ हाँ 100 है। आप क्या करोगे, जब हम लोग बैंक ओडी अकाउंट होता है, राइट, पैसा आता है जाता है, पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, चलता रहता है क्या? यस सर। तो आपके पास एक लिमिट होती है कितने की, 100 तक की। अभी आप पूरी 100 यूज करो बैंक ओडी में या नहीं करो, बराबर है क्या? वो आपके ऊपर है। शॉर्ट टर्म में आपको मैंने 100 दे के रखा है, 100 अगर आपने पूरा यूज किया क्रेडिट, तो आप कितना सेल चर्न आउट कर सकते हैं, 500। और ये क्या रहेगा, साइक्लिकली क्या रहता है, चलता रहता है। बैंक ओडी कभी बंद नहीं होती। 100 इन्वेस्टमेंट रहती है मेरे पास, लाइक इफ आई डू 500 सेल आई विल सेव 100 फ्रॉम दैट फॉर नेक्स्ट ईयर। नहीं नहीं ना, बाकी सबको भी तो पैसा देना है, ओके ओके। बाकी सबको पैसा देना है कि नहीं देना है? तो वही चर्निंग चलता रहेगा। थोड़ा पैसा तो हमेशा बिजनेस में इन्वेस्टेड ही रहता है क्या? आप ऐसा बोलते हो क्या आगे वाला पैसा कमाएंगे वो वापस इन्वेस्ट करेंगे, अगर आपकी आगे तो वाला लिमिट पैसा? रहती है ना वर्क इसकी हाँ, ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट की 100 की लिमिट है आपकी। फिर आपने क्या बोला, सर अभी मेरे को ना अगले बार 512 करने का, तो 100 की जगह कितना लिमिट लगेगा अभी, बताओ मेरे को। 512 इंटू 20%, राइट। यानी वो क्या बोलेगा, 100 की तो लिमिट है, चल तेरी 2.4 की लिमिट बढ़ा देता, यानी तू कितना सेल कर पाएगा, 512। वो 102.4 रहेगा आपके पास। हाँ, 102.4 की लिमिट हो जाएगी। ओके। तो बैंक बोलता है देख तेरे को 100 दिया तो कितने का सेल कर पाएगा, तुम बोले 500, ठीक है चल ले 100 का लिमिट, तू 100 यूज कर पूरे साल में कैसे भी, ठीक है। ऐसा ये लॉजिक से याद रखो सुखमीन। फिर आप बोले सर फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, उसने बोला कैसे चल रहा है कामकाज, 500 का सेल कर पाएगा। देखो बैंक को क्या है, आपको जो ये 100 दिया ना इसके ऊपर उसको अच्छा खासा 12% का इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, 12% इंटरेस्ट। तो वो क्या है, ये 12% इंटरेस्ट के लिए तुमको शॉर्ट टर्म लोन देता है। तो प्रिंसिपल वापस नहीं चाहिए बैंक को, प्रिंसिपल चाहिए, बैंक बोलता नहीं वही री इन्वेस्ट करते रहो, 100 का ही तुमको आएगा पैसा ना, वही इन्वेस्ट करो वापस। 100 तक की लिमिट का मैं लोन दे चुका हूं, मजे करो। अब आपने क्या बोला, सर 100 से हम 500 का सेल कर रहे, बट सर अगले साल ना 512 का सेल लगने वाला है सर, यानी सिर्फ 100 में काम नहीं चलेगा सर, इसका 20% यानी 102.4 टोटल लगेगा। बैंक ने बोला अरे 100 तो है ना तेरे पास, हाँ तो एडिशनल कितना चाहिए, 2.4। चल ले जा 2.4 की लिमिट ले जाए भाई, इसको 112.4 दे दो, यानी 2.4 एक्स्ट्रा दे दो, या वट एवर 102.4। फिर आप बोले हाँ चलो चल, पूरे साल आपने काम किया 102.4 से, बराबर है। फिर अगले साल सेकेंड ईयर के एंड पे खड़े रहे और बोले सर इस साल ना 560 तक सेल जाएगा, सेल बढ़ रहा है सर, ठीक है भाई तेरे को कितना चाहिए, दिस इंटू 20%, यानी कितना 112 चाहिए, तेरे पास है कितना 102.4। ए भाई एडिशनल 9.6 दे दो इसको, चल भाई ये ले 9.6, तेरा काम चालू कर, 560 का सेल करके दिखाना। क्या बोलते हो? फिर 560 का पूरा साल खत्म हो गया, थर्ड ईयर एंड हो गया, फोर्थ ईयर में तुम्हारा एक्सपेक्टेड 630, तुमने बैंक को जाके बताया अरे सर ये 630 630 630, अरे डिफरेंस कितना है भाई बता, कितना है, 70 का डिफरेंस है, तो सर इसका 20% एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 14 एक्स्ट्रा चाहिए, या 630 का 20% 126 चाहिए सर, अरे तेरे पास 112 है ना, एडिशनल 14 दे दो रे इसको, यानी बैंक बोली एडिशनल 14 की सर वो लिमिट बढ़ा देंगे बस, लिमिट बढ़ा देंगे। अब सुनो ना, नेक्स्ट ईयर में अगर आपका 480 सेल होने वाला है तो आप बैंक के पास जाएंगे, सर आपने 126 दिया है बट इतना नहीं चाहिए सर, 480 का 20% यानी 996 ही चाहिए सर, 30 वापस ले लो सर, वापस ले लो, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वापस ले लो, इतना सेल होने वाला, खाली फोकट का ब्याज भरोगे क्या आप एक्स्ट्रा पे, नहीं खाली फोकट का इंटरेस्ट विल यू पे ऑन द एक्स्ट्रा? नो सर। नो। अरविंद व्हाट डू यू से?
Making sense or no? Sir, yes, sir. Now is the logic okay? Working capital investment. Sinchana, what do you say? Nehal, got it Sinchana or no? Got it, sir. Got it. नेहल क्या लगता है ऐसा ही होता है क्या? तो देखो आ जाओ, अब 2 या 3 मेथड है इसको सॉल्व करने के, 2 या 3 मेथड है उसके बारे में बात करते हैं। एक सिंपल मेथड है और एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट मेथड है। आपको कौन सा मेथड करना है बताओ मेरे को। शॉर्टकट तो बोलना भी मत, ठीक है? चाहिए भी नहीं, आ जाओ राइट डाउन ये, राइट। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 20% ऑफ सेल्स। कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब पहले मेथड 1 लिखो, एक सिंपल मेथड है बट वो मैं रेकमेंड नहीं करता, राइट? या पहले रुक जा, लॉन्ग कट लेते हैं। आप यही मेथड यूज करो, मैं तो बोलता हूं मेथड 1, ओपनिंग बैलेंस 0 ईयर में 0 बैलेंस है, फिर मैं करूंगा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाउ मच इज द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट? ये 500 इंटू 20%, यानी हाउ मच इज द क्लोजिंग बैलेंस? बोलो। 100। दिस प्लस दिस, बराबर है। हाँ, और ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट है यानी नेगेटिव में डालना पड़ेगा, बराबर है। फिर गो अहेड, नाउ दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। नाउ एक मिनट, हाउ मच एक्स्ट्रा? नाउ सी टू वेज ऑफ डूइंग दिस, इधर यू कुड डू व्हाट सर, सी 5112 से 500, दिस माइनस दिस इनटू 20% इज माय एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इन नेगेटिव, करेक्ट? वो दोनों How add much is होंगे। my investment? 100 plus this 2.4, 100 Yes, and sir. 2.4. Or you could have done this like this also. Sir, see, ये ना मेरे को चाहिए this into 20%, this into 20%, correct? And this difference is nothing but by extra investment. Both the ways it will be okay, correct? So here, sir, 102.4. अब मेरे को बोलो, two ways of doing it is equal to bracket open 560 I want to do it next year, 512 I have already invested, right? So how much do I require extra? This into 20% and this plus this. Or sir, next year how could I do? Sir, see, I have what, 630 I need 561, correct? This into 20% and then this is the difference. रुको, this into 20%, negative this into 20% and this is the difference, closing minus opening. You can do it like this also. How you want to do it, you give it a chance, बराबर है क्या? देखो अब if this is okay then I can talk about the last year. बोलो, is this okay or not okay? यहां तक ओके? सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ सर, हाँ, नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं हम? बिकॉज इट इज इन्वेस्टमेंट, नो, यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर टेकिंग द लोन एंड इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। ओके तो क्या हो रहा है तुम्हारी जेब में से, क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है। आउटफ्लो जा रहा है, ठीक है। So last year, here you have to look in the question what you have to do. चलो एटलीस्ट इतना तो आप समझ गए क्या? एक ब्रेक लेते छोटा और फिर कंटिन्यू करते हैं, राइट? कम बैक बाय 12:35, 12:36 तक आ जाओ।
चल, can we go ahead? बोलो. Yes, sir. Quickly, let's start. हाँ. Now last year what to do? Last year. Have a look. Working capital, investment, repayment. Can you see? Copy this table quickly. I'll explain it. First, copy this table. If nothing is given in question, assume repayment happens. बताता हूँ. Don't worry. Write it down. Everybody back. Write it down, Baba. Yes, sir. Can I go Done, ahead? sir. Done. चलो. Now at the end, अभी आप 4th year के end पे खड़े हो. The project has been completed. Now you go to the bank and bank says, बोलो भाई 5th year में क्या करना है? You're like, sir, the project is only closing. So next year sale will be zero. Next year sale will be zero. So we do not need the what? Working capital at all. कोई बात नहीं. कितना वर्किंग कैपिटल है तुम्हारे पास? 126. रीपे द होल वर्किंग कैपिटल टू अस एंड गो. रीपे द होल वर्किंग कैपिटल टू अस एंड गो होम. यानी क्या हुआ? यू इन्वेस्टेड 100, 2.4, 9.6, 14. टोटल हाउ मच डिड यू इन्वेस्ट? बोलो. इन द वर्किंग कैपिटल 126. एंड यू रिपेड बैक हाउ मच? बोलो. Repaid back how much? Put 126 back. You said no, sir. Will you not repay this to the bank? Right? If you close the business, you have to repay and go home. As in, complete the project. Then close whatever is invested or borrowed from the bank and invested into the business. पूरा का पूरा वापस दे दो बैंक को and go home. देख लो. सर Make आपने अभी sense? तक क्या पढ़ा है? अभी कुछ भी ज्वाइन नहीं. यही working capital investment repaid. Right? If at the end you repay the working capital, what does the bank say? That 5th year sale is how much? Zero. That means you are closing the business. Bank says, or you say to the bank, yes. So whatever we have invested or loan we have given to you, fully क्या कर देना? Repay back the loan to us. Or whatever investment we have done, whatever you have done investment, take that money back from the bank. Right? सर फिर मतलब थोड़ा समराइज कर सकते हैं क्या एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं आप? पहले आपने इन्वेस्ट कर दिया 100 रुपीज. Now, what will happen? Will you have extra money at the end? Yes. हो सकता है ना. आ गया. उससे बैंक का लोन रिपे कर दो. तो ये जो 126 है ये रिपेमेंट है आपका. हाँ, 126 is the repayment. तो सर ये जो आप बोल रहे हैं ये बैंक मेरे को ये नहीं समझ रहा. आप एक बार आउटफ्लो कर रहे हो उसके बाद इनफ्लो.
तो आउटफ्लो मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, हाँ और जो बैंक को रिपेमेंट जा रहा है वो इनफ्लो कैसे, मतलब सर वो भी आउटफ्लो होना चाहिए ना फिर। कैसे आउटफ्लो? तुमने 126 बिजनेस में लाख। से निकाला ना पैसा, पहले बिजनेस में डाला पैसा, बिजनेस से निकाला बैंक अच्छा, विड्रॉ करने, ठीक है, ठीक है, राइट. ओके So see सर। how this works out logically. If you look at it, have a look. Let's say you have first year में sale, second year में sale, third में sale, fourth में sale. Okay, the sale is something like this: 500, 550, 475 and 580. Okay, so now working capital is 20% of sale. Correct. So चलो, working capital investment that you will require 0 year. Correct. For a second, right, let's say you say working capital investment line डायरेक्ट करनी है, right, आराम से ओपनिंग बैलेंस भी लिख देता हूँ. ओपनिंग बैलेंस 0 ईयर में 0, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट 100 का इन्वेस्टमेंट, राइट. हाउ मच इज द क्लोजिंग बैलेंस नाउ? टेल मी. 100. हाँ, ये 100 ओपनिंग. देयर आर टू वेज. डायरेक्ट 550 का 20% क्लोजिंग बैलेंस बोल के ले लो, वन वे, और टू वेज ऑफ डूइंग इट. हाउ मच इज 550 का 20%? टेल मी. 550 का 20% बोलो. How much is 550 का 20%? 110. Correct. Means additional 10 का working capital is required. yes yes 475 का 20% you can do. How much is that? 95. 95. Now that means 110 is the opening balance. And now, do you need more money or do you have to repay the extra money? Tell me. Repay how much? 15. सर एक बार वो दूसरा आपका दूसरा मेथड उससे भी बताओ. This is one method. रुको ना, पहले ये खत्म करने दो. 580 का 20% is how much? Tell me. 580 का 20% बोलो. 116. 116. Correct. And you have 95 का balance. How much additional do you have to invest? 21. Invest. फिर at the end of fourth year 116 है. बैंक के end में, fourth के year में you say 116 is already with me. Now fifth year में there is zero sale. Zero का 20%. Zero. तो 116 repay कर दो, काम खत्म. This is mechanically how to do it. बराबर है. अब लॉजिक से जाते. How to do it logically? Have a look how to do it logically. Now let's go by logic. आ जाओ. How to remember it logically? Mechanically हो गया. अब logically देखो. Okay. I will say opening balance 0. Working capital investment, sir, for this 500 20%. Correct? Yes sir, 100. So 100 is required. Closing balance. Then this will become opening balance. Then I will say, sir, from 500 I am moving to what? 550. अरे रुको रे, फर्स्ट ईयर में लिखना पड़ेगा. हाँ इधर 100 negative. Sir, I already can churn out with this 100. I can churn out 500 का sale, but I want to churn how much? 550. That means additional sale is how much? 50. So I need to invest 20% of this for additional sale. 10. So 10 का additional investment 110. Then 110 is my opening balance. 110 is my opening balance now. But sir, now second year and I'm looking at third year. Now sir, I'm not having additional sales. I can do 550 ka sales, but I require only 475. Means what? There is a reduction in sales. So that additional investment that I've done, I have to get back 20% of this. 75 ka 20%, 15 I need to get back. 95 is the closing balance. Here sale increasing, then I will do additional investment. Sale decreasing, I will plow back the investment that I have done in the working capital. Correct? Then this 95 will come up. Correct? Then the difference between 475 and 580 is how much? How much? 105 is again what? Additional sale. So additional investment will be required. How much 21. additional required? 21. How much? 21. 105 ka 21% additional investment required. It will become how much? 116. Yes, Then sir. 116. Next year, sir, from 580 it is going to 0. So minus 580 ka sale, sir. Sale is going down. So sir, iska 20%, 116 I will do positive and 0 will be the value. Okay sir. आप खत्म.
अभी समझा सर। बोथ वेज आर यू ओके डूइंग इट? सुखमीन क्या लगता है? Yes, sir. ये क्यों कराया, इसका रीजन है क्या लगता है मोहित जी? सही है क्या? शर्वनी, Yes, यस sir. सर। नेहल, नेहा, क्या लगता है? ओके है। नाउ हैव अ लुक. So here at the end, let's say I said that boss, what is happening? Your money you are getting back, but what if you are not getting the money back? Have a look. I will do two things. Now what happens? You are done with the project. Be part of it. Okay, be part of it. एक सिंपल मेथड कराओ क्या इसको करने का, या यही बेटर है? जाने दो, सिंपल पे जाने ही नहीं, सर वो यही बहुत मेथड बेस्ट है, कंफ्यूजन हो जाता जब रिवाइज करते हैं ना। ये बेस्ट है. करेक्ट. Now what if working capital is not repaid back at the end? What you will do? Now sir, what is the explanation for working capital not repaid back at the end? Everything will be the same. Correct. But what happens, no? Your project is done, you are sitting with the team of managers and you say बाबा सी देखो हमारा 4 साल का प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, अब हमको क्या करना है? टेल मी. We have to now what wind up this project, right? All the working capital that we have invested, उसको क्या कर लेंगे? टेल मी. वापस ले जाएंगे. तो दूसरा मैनेजर बोलता है अरे यार वो वर्किंग कैपिटल है क्या तुम्हारे पास, राइट? कैन आई यूज दैट वर्किंग कैपिटल इन माय प्रोजेक्ट? तो लाइक ओके, बैंक को हम बोल देंगे दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद दैट वर्किंग कैपिटल, राइट? या हम वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, या बोल देंगे कि आपके प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, आप कंटिन्यू करो. इन दैट केस विल यू टेक आउट दैट मनी फ्रॉम योर बिजनेस? बोलो. नो. एंड द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन लास्ट ईयर विल बी जीरो and this balance will continue as is. But will it be used by your project or the other project? बोलो. दूसरा प्रोजेक्ट। अदर प्रोजेक्ट। सर पर बैंक इसके लिए कैसे ये होगा? बैंक उससे बात कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अलाउ कर देगा. इफ बैंक इज अलाउइंग देन नो टेंशन. करेक्ट और नॉट? हैव अ लुक. बराबर है? एनी टेंशन? सर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही चलता है? चलता है, हो सकता है, कैन बी ट्रांसफर्ड, एसेट ट्रांसफर करके काम हो सकता है. मतलब एसेट ट्रांसफर मतलब? एज इन वॉट एवर इन्वेंट्री पे जनरली चार्ज होता है, दैट तो आप इन्वेंट्री दूसरे चार्ज. प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री ये कर देंगे ऐसा? नाउ सी हैव अ लुक. 500, 700, 400 और 800, ठीक है? या 400 और 200, ठीक है? कैन यू डू दिस विदाउट माई हेल्प? कर सकते क्या? चलो एक्सेल पे करो. डू इट विदाउट माई हेल्प. करो 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 करो. बोथ पेड रिपेड बैक एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नॉट रिपेड बैक एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. ये ले लो 15% ऑफ सेल्स. बोलो बोलो बोलो. डू इट डू इट डू इट. ओपनिंग, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग. हाँ, जीरो रहेगा ना? एट द एंड तो फर्स्ट में जीरो रहेगा. हाँ फर्स्ट में जीरो। बट आई वॉन्ट, एक मिनट, हाँ, बिफोर वी गो, विच लाइन विल गो इनटू द आंसर? वर्किंग ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग वाला। बैलेंस और इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट वाला सर। Investment. हाँ, लिख देता हूँ, बहुत बार कंफ्यूजन होता है.
हाँ, जस्ट चेक योर आंसर, आई एम रीडूइंग द क्वेश्चन। आ जाओ। Have a look A part of the answer. Are you getting the same answer? B part of the answer. अरे सर आपने 15% दिया है ना। हाँ। वहाँ पे 20% के हिसाब से है। हाँ सर। इधर 20 आया क्या? मैंने 20 लिया क्या? हाँ मैं वही देख 15 रहा ले लो। ओके क्या? देख लो ये वाला 75 एंड में कितना बचता है भाई? ओके क्या? इधर हो जाएगा 0। ऊपर नीचे का विल यू बी कंफर्टेबल नाउ? यस। क्या लगता है शर्वनी, सिंचना, Yes, इहा, नेहल? sir. ओके है। अच्छा हाँ सर। चलो अब थोड़ा सा ना आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। चलो इस केस में क्या होगा बोलो? डू यू नीड माई हेल्प? थोड़ा सा और चेंज करना पड़ता रखो। हाउ विल यू डू दिस? बोलो। सर फर्स्ट में तो हम 25% ही लेंगे। 25% ही लेंगे। सेकेंड ईयर से सेकंड में इनका 500 एंड 700 का डिफरेंस एंड उस पे 15%। 15%, राइट। चलो आ जाओ, कैसा करेंगे? आ जाओ। चलो सबसे पहले ऑन दिस 500, देखो अगर मैं यहाँ 0 भी लिखूं तो ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं? इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, पहले तो नेगेटिव डाल देता हूँ। दिस 500 माइनस दिस 0, द होल इंटू कितना करेंगे? 25। सबसे पहले 25%, बराबर है। बट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में भाई लोग कैसा करेंगे? 15।
हाँ, बट किस पे 15? सर 700 माइनस 500 ये -700 में से 500 माइनस होगा इंटू और 15। दिस इंटू 15, यानी एडिशनल पे कितना परसेंट लगेगा? पहले साल में ज्यादा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है सेल्स के, फिर आगे जाते हुए एडिशनल सेल्स पे 15% भी चल जाएगा, क्योंकि वी विल हैव गुड ऑपरेटिंग, डे टू डे बिजनेस वुड बी वेरी nicely efficiently worked out, so we would not require additional what investment. 25% नहीं लगेगा, ओनली 15% लगेगा। देन नेक्स्ट ईयर क्या करूंगा बोलो? नेगेटिव ऑफ माइनस 900 माइनस 700 इंटू कितना? 15%। देन क्या? नेगेटिव ऑफ 1200 माइनस 900 इंटू 15%। बराबर है क्या? यस एंड लास्ट में व्हाट यू विल डू? इधर जीरो है फॉर एग्जांपल, यही कॉपी कर दो, देखो सर यहाँ तो रीपे हो जाएगा पूरा। क्या पूरा जीरो हो जाएगा ना? हाँ जी। तो पूरा जीरो कैसे नहीं हुआ? तो यहाँ कुछ लफड़ा क्या? रुको, 185 45 230 1200 इंटू 15%, जीरो ही हो जाना मांगता था, कैसे इंटू 15%? नहीं, इधर लास्ट ईयर में क्या होगा? तुमको सर ये हाथ से नेगेटिव नेगेटिव आएगा। डालना पड़ेगा। हाँ लास्ट ईयर में क्या करना पड़ेगा? हाथ से नेगेटिव करके 230 रीपेड बैक करना पड़ेगा। ये वाला थोड़ा टफ है, लास्ट ईयर पे ध्यान रखना पड़ेगा, पहले साल में ध्यान रखना पड़ेगा। सर ऐसा सर कैसा कुछ भी? सर आई थिंक हाँ, वो परसेंट चेंज हो रहा है इसलिए वो कंसिस्टेंट नहीं परसेंटेज चेंज हो रहा है इसलिए इट इज नॉट कंसिस्टेंट, सो दिस यू विल हैव टू पुट 230 ओनली लास्ट ईयर में, हाथ से डालना पड़ेगा पॉजिटिव 230, यानी ये नेगेटिव करके 230 एंड जीरो करना पड़ेगा। सर ऐसा कैसा क्वेश्चन होता है क्या? बताता ना मैं, है ऐसा क्वेश्चन आया है। है कहीं तो एडिशनल सेल्स ये वर्ड यूज किया हुआ है, एडिशनल या इंक्रीमेंटल सेल्स दोनों में से एक। इधर था भाई, एक क्वेश्चन है। हम्म, रुको, इसमें है वो भाई, तो तुम्हारे बिजनेस वैल्यूएशन में। कौन से में था रे? वर्किंग कैपिटल 1050 इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, कहीं तो था रे। हम्म पढ़ो। पहले कितना? पहले कितना परसेंट है? 20%, और फिर बाद में सेकेंड ईयर से 10% and additional sales. अरे मन से नहीं कर रहा मैं, मेरे को क्या मजा नहीं आ रहा तुमको तकलीफ देने को, ऐसा ही है वो, मेरे मन का नहीं है। हाँ, लास्ट ईयर में, राइट, यहाँ पे सर उसको रेड कर दो। वही कर रहा हूँ, उसको नोट ही लिखता हूँ ना। ओके।
this is to be written by hand, as no formula will work here. Yeah, as the closing balance has to be 0. लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग ना इसके बाद वाला क्वेश्चन है. बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में चलते क्या? 1 मिनट के लिए बी पार्ट में चलते. बी पार्ट चलते क्या? 1 मिनट. सब कुछ सेम है, बट बी पार्ट में व्हाट विल बी डिफरेंट कैन यू टेल मी? इधर कितना होगा लास्ट ईयर में? विल यू रिपे बैक एवरीथिंग और नॉट रिपे बैक एवरीथिंग? बैलेंस रहेगा सर. नॉट रिपे बैक. तो ये भी दिस इज टू बी रिटन बाय हैंड, as no formula will work here, as the closing balance has to be equal to last year opening balance, right? And no repayment happens in last year, correct? बराबर है क्या? देखो दोस्तों, बराबर है बेटा, देख लो. See these kind of small mistakes, right? It is good to invest time. These small mistakes make you lose marks in exam. Plus multiple rate. ठीक है क्या दोस्तों? कोई टेंशन? एक और आपको ट्राई करना है खुद. यू वांट टू ट्राई इट ऑन योर ओन. मेरे को क्या करो मालूम है क्या? ए पार्ट में ए पार्ट ही करो लगा, तो बी पार्ट करने का जरूरत नहीं है. ओके मैं क्या करता, यही से क्वेश्चन कॉपी करता, ये यही इधर लिखता हूं. ठीक है, एक मिनट रुको. देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे. वही से क्वेश्चन कॉपी किया है. कर सकते खुद. सेम वही का क्वेश्चन, खाली क्या किया मैंने, अमाउंट चेंज किए और क्वेश्चन वही का वही रखा है. मेरे को खाली बताओ कि लास्ट ईयर में हाउ मच विल यू रीपे बैक. क्या बताओगे? फाइनल आंसर क्या है? लास्ट ईयर में हाउ मच विल यू रीपे बैक. यू ऑल्सो डू, आई विल ऑल्सो सॉल्व. ओके, both of us let's solve together. आंसर मेरे पास रेडी है, आपका हो जाए तो बताओ. आप मेरे को बोलो पहले क्लोजिंग बैलेंस क्या आता है. टेल मी व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस.
बोलो, व्हाट इज द आंसर? टेल मी हाउ मच, फोर्थ ईयर के एंड पे हाउ मच विल यू रीपे बैक? बोलो, फोर्थ ईयर के एंड पे हाउ मच विल यू रीपे बैक? कुछ तो आंसर आया होगा ना? मेरा 356 आ रहा है। 356. Everybody getting 356 or some different answer? Sir, I'm getting 316. 316. आ जाओ जरा देखते हैं कितना है. 356. 356. देख लो 356.3. Everybody getting 356. देखो एक बार चेक करो, मैंने सही लिखा है ना रे ऊपर से नीचे? एक बार चेक कर लो सबका यही आ रहा है क्या? सुखमीन कर रहे क्या? सिंचना, सर एक बार are you F2 doing हाँ सर, करना कर ना। रही हूँ, कर रही हूँ। Yes, sir. doing it? क्या बोल रहे हैं F2 रवि? करना ना, F2। रोहित जी क्या लगता है? हाँ जी सर। ओके है. चलो आ गया. अब ये जो डिफिकल्ट वाला पार्ट था वो हो गया. अब क्या है, एक शायद थोड़ा सा इन्फ्लेशन वाला पार्ट डिफिकल्ट जा सकता है, बाकी अब सब इजी है. ये एक ही पार्ट है विच इज कंपेरेटिवली अ बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड. बाकी अब नाउ इट इज ऑल इजी क्वेश्चन. देखो ना आप कौन से पार्ट बचे, देखो जरा क्या बचा है. ये हो गया दोनों मल्टीपल रेट्स. वर्किंग कैपिटल ईयर 0 गिवन, इंक्रीजिंग बाय इन्फ्लेशन रेट. इसमें एक सिंगल इन्फ्लेशन रेट रहेगा तो टेंशन नहीं, मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट भी आता है इसमें, बराबर है. और एक और पार्ट है, बस उतना ही करना है. उसके बाद वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय बाय. आ जाओ, राइट डाउन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिवन, start of project and growing by single inflation rate. यानी आप देख रहे हो वैरायटी कितना है, इसमें भी सिंगल इन्फ्लेशन एंड मल्टीपल इन्फ्लेशन बोथ. इसमें सेल्स का कुछ लेना देना नहीं है. ये देखो ये रहा क्वेश्चन. बोलो इसको कैसा करेंगे, हाउ डू यू प्लान टू डू दिस? एक मिनट, प्रोजेक्ट कितने साल का है वो देना पड़ेगा. बोलो हाउ डू यू प्लान टू डू दिस पर्टिकुलर्स 0 1 2 3 4. How do you plan to do this? बोलो.
ओपनिंग बैलेंस कुछ कर सकते हैं इधर, कुछ सेल विल पे परसेंटेज है क्या? नहीं। नहीं। ओपनिंग बैलेंस कर सकता, मैं कर सकता, ओपनिंग बैलेंस 0, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा फर्स्ट 0 ईयर में? हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस और इन्वेस्टमेंट इनटू वर्किंग कैपिटल? 500,000। 5 lakh। तो नेगेटिव 500,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा बोलो? 5। अब आगे क्या करेंगे? So you will increase by 5%. यू विल इंक्रीज, Multiply by inflation rate. बट इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? क्लोजिंग बैलेंस 5% से बढ़ेगा, 500,000 505% से बढ़ेगा, क्या होगा? अरे सर ऐसा कैसे बढ़ेगा? तो ओपनिंग का 5%. Yes sir। ओपनिंग का 5%, तो दिस इंटू 5% करेंगे आप, हाँ। Yes। बराबर है, ये बढ़ेगा, यानी दिस प्लस Plus दिस, this। बराबर है। Yes। देन दिस 525,000 विल कम हियर। फिर ये 525,000 का 5% या 500,000 का 5%? 525 का। This into 5%, correct? Then this will increase, this plus this. Why I am telling you right now you will not understand this, but जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो ऐसे ही सिली डाउट आते क्या? Yes sir। आते दिमाग में चलते रहता कुछ ना कुछ। अब लास्ट ईयर में, अभी अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, रिपेड बैक एट द एंड ऑफ द ईयर, बैलेंस तो 0 हो जाएगा सर और दिस इनफ्लो विल हो बी जाएगा। नेगेटिव 578 एंड दिस विल बिकम दिस प्लस दिस, सही है? इसको आप इजीली भी कर सकते थे क्या? दूसरी सर मेथड मत बताओ करो क्या? मत करो सर, कंफ्यूज बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। जाने दो, आ जाओ। नॉट रिपेड बैक एट द एंड को कैसा करेंगे? याद है ना मैडम? क्यों नहीं? कश्मीर मैडम है क्या? याद है क्या? दूसरी मेथड नहीं बता रहा हूँ, है क्या? या गई छोड़ के हो? है ना कश्मीर मैडम? दूसरी मेथड बताओ क्या? नॉट रिक्वायर्ड, है नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, कंफ्यूज हो गए दूसरी मेथड में, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम ज्यादा है। सर, एफएम में भी बताया था सर, वो सोच दो वो हैंग हो गया था मैं 2 घंटा। देखो, ओके क्या ये इजी है? बट ये अगर इजी है सुनो ना, सर। ये इजी है, सबको इजी जा रहा है। Yes What do you sir। say? मोहित जी ओके क्या ये? Yes sir। किया क्या लगता है? अरविंद व्हाट डू यू से? अरविंद इज ऑलरेडी क्वाइट, Yes, sir. Sir, you can explain it. ओके चलो। No, I couldn't अब यही understand. यही 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 सुनो, अगर 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 ऐसे होता, मल्टीपल है। इन दिस केस व्हाट यू वुड हैव डन? यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। So opening into inflation rate. ओपनिंग इनटू फिक्स। इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, ये तो 5% ठीक है फर्स्ट ईयर। ठीक है सर, चलो आ जाओ, यहाँ पे चेंज होगा 525 पे हाउ मच विल यू ग्रो? 1.05 1.07। यानी 1.07 करोगे, इधर इन्वेस्टमेंट तो दिस इंटू 7% होगा भाई, दिस इंटू कितना होगा? 9%। 9. एंड दिस इंटू कितना होगा? इधर होगा क्या लास्ट ईयर में? नहीं सर। नहीं, लास्ट ईयर में तो नेगेटिव ये करके क्लोज कर दोगे। देखो सर ये समझा दो ना फिर, वापस सिंगल देखो ना, रेट दिया था। 500,000 करेक्ट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव 500,000 हाँ करेक्ट, दिस विल ग्रो बाय हाउ मच इन फर्स्ट ईयर? 5%। 5%। इधर कोई डाउट? नहीं सर। दिस 525 देन विल ग्रो बाय हाउ मच परसेंट? 7%। Then this 561,750 will grow by how much? 9%. Last but not the least, negative of this closed off. But यहीं पे वो क्या होता? This into everything will remain same. But what will change here?
हियर इट विल बिकम 0। बस है क्या? देख लो एवरीबॉडी। सुखविन क्या लगता है? यस सर, समझा। सॉल्व हो रहा है। समझा? सिंचना समझा कि नहीं समझा? यस सर, अंडरस्टूड और नो? अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड। सॉल्व इट विद अस। लास्ट ईयर का विल यू एवर टेक दिस? लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन फैक्टर विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट। देखो मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा, ये है दिया हुआ। किधर दिया हुआ है? एम्बरले कंपनी में आओ, एम्बरले। मन से नहीं है मेरे, मेरे मन से नहीं, मेरे मन का कुछ लेना देना नहीं। ये देखो इधर, ये देखो, ये पढ़ो, ये क्या है? ठीक है सर। एक सिंपल ट्रायल बॉल दो क्या? एक क्वेश्चन है मैं, क्वेश्चन ऐसा आता, कुछ भी लिखा हुआ नहीं, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, वुड यू कंसिडर पेमेंट एट द एंड ऑफ और रीपेमेंट एट द एंड, और वुड यू नॉट रीपेमेंट। अज्यूम रीपेमेंट? रीपेमेंट हो जाएगा। तो हाउ विल यू डू दिस? तो बहुत इजी है। क्या करोगे बोलो? फर्स्ट ईयर में, सॉरी, 0 ईयर में आ जाएगा आपका। 0 ईयर में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो अगर मेरे को करना भी है ओपनिंग बैलेंस, इट विल बी 0। इधर 0, फिर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? -5। -500,000। या राइट, क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? विल यू ऐड एनीथिंग हियर? नो सर, माइनस। करेक्ट है क्या दोस्तों? फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर व्हाट यू विल डू? नथिंग गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक assumption? रीपेमेंट। Repayment 500,000, so you do this into -500,000। ठीक है क्या दोस्तों? शेरवानी, यस आप तैयारी करके गए टेस्ट मैच के लिए, फास्ट बॉल, क्या गुगली स्पिनर, दूसरा आ गया स्ट्रेट बॉल, बराबर है क्या? फुल टॉस बॉल, ऐसा फुल टॉस बॉल आया है क्या? अरे बहुत बार आया एग्जाम में, आया है। देखो ये एक साथ करने का ना फायदा है। फर्स्ट आई यूज्ड टू डू इट स्कैटर्ड, जब जरूरत पड़ती है तब, बट एक साथ करोगे ना, यू हैव एवरीथिंग अंडर वन रूफ। कोई भी क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल, यू कैन गो हियर एंड रेफर इट। लास्ट क्वेश्चन, अभी कुछ भी इसका लेना देना नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन है, आ जाओ। करेक्ट। हैज नेवर कम इन एग्जाम एफएम एएफएम किधर भी। कैसे करोगे बताऊंगा। सो रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो ओपनिंग बैलेंस है अपने पास, नहीं है,
जीरो ईयर का तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा जीरो ही रहेगा. हमको वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ढूंढना है, मालूम नहीं कैसे ढूंढना है, बट डू वी हैव द क्लोजिंग बैलेंस? यस सर, क्लोजिंग बैलेंस है. हाउ मच इज द क्लोजिंग बैलेंस? दिस प्लस दिस. लॉजिकली तो ये होता है, और वो दिया है क्या क्वेश्चन में? दिया है, राइट? देन दिस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर. यस सर. This is negative 65,000. This will become what? Opening balance next year. Then negative 85,000. This will become ये, and ये है closing balance, और ये लास्ट में जीरो. ये हो गया 55,000. तो आप निकाल सकते क्या? बोलो कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट? 55,000 में से माइनस क्या करना पड़ेगा? ये ओपनिंग बैलेंस. क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करे तो वर्किंग कैपिटल निकलता क्या? यस सर. Yes, sir. मीन्स 55 है तो आपने फर्स्ट ईयर में 55 इन्वेस्ट किया, फिर 65 का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब एडिशनल कितना इन्वेस्ट किया? 10,000. यहाँ पे फिर 65,000 का ओपनिंग है, राइट, जो कि 85,000 हो गया. तो हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट? 20,000. देन 85 तो एडिशनल है या कम हो गया? फिर बोलो. 55 का यानी क्या हो गया? कम हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड, दैट मींस पॉजिटिव. एंड देन एट द एंड, as this balance is zero, what will happen at the end? Tell me, is the repayment happening or not happening? Happening sir. वही ये सुनो, वही ये है. नहीं, कोई बुक में नहीं है ये क्वेश्चन. यू गो टू एनी बुक. दिस वाज 55,000 ओनली. मींस व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द लास्ट ईयर? कैन यू टेल मी? रिपेमेंट हो गया. नहीं, रिपेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? द बैलेंस इज Zero. सेम. सो जीरो नहीं हुआ. हैव अ लुक. ये 55,000 होता, एंड में जीरो होता, यानी क्या? इज द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिपेमेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इन द लास्ट ईयर? सर. अरे जनता, मजा आ गया क्या? कुछ अलग सीखने को मिला? टेल मी अरविंद, समथिंग न्यू बडी? Yes, sir. Yes. This is all the example, and somewhere I have given this also, that instead of this directly, if they give you this is WCI, then the answer is the same, correct? Same answer. Okay, then what? This line only is the answer. I don't need any other line. That is okay. I don't want to even go too much detail of that. This is okay. If the balance or directly working capital investment is given, then what to do now? Directly it is given. Here if it is zero, then zero. ठीक है, इसका नहीं. I am not much. This question never comes in exam. But if the examiner wants to trick you, he can give you this type of question. This is to his favorite. This is his favorite. Which one? Multiple rates is his favorite question, because here in the fourth year you will always go wrong. There are chances you will go wrong. Multiple inflation rate plus working capital investment is also his favorite. This balance he has never asked. These two questions never asked. But can he ask them? Yes. Has he asked them? No. ये दो नहीं पूछा है. But can he? Yes. देख लो भाई, correct है. Okay. Now have a look at one of the questions. फर्नहर्स्ट कंपनी बोल के एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में. फर्नहर्स्ट, देयर आर टू क्वेश्चंस. एक फर्नहर्स्ट भी है और लिटिल ब्रेडी भी है. लिटिल ब्रेडी करते. फर्नहर्स्ट इज कंपैरेटिवली वेरी इजी. लिटिल ब्रेडी में चलो. कैन वी सॉल्व लिटिल ब्रेडी? हाफ एन आवर आई हैव. आई कैन कंप्लीट लिटिल ब्रेडी. बोलो, कैन वी डू इट? चलेगा? कैन वी डू लिटिल ब्रेडी? बोलो बोलो. यस सर. चलो, आ जाओ. We'll put the Excel in this half an hour. Little bit question दिख रहा है क्या? Now चलो, you also do what? Solve it with me. Okay. आ जाओ. हाँ, by which method should we do it? Tell me. Little Brady. कौन से मेथड से करेंगे? बोलो.
लिटिल ब्रेडी, विच मेथड विल यू डू? डायरेक्ट से करे, इनडायरेक्ट से करे, किससे करे? इनडायरेक्ट से करे, Yes, sir. हाँ इनडायरेक्ट से करते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट से करे, डायरेक्ट रीशफल से करे क्या? उसी को फिर कॉपी पेस्ट करके इनडायरेक्ट भी बना सकते हैं, 2 मिनट लगता है खाली। ठीक है सर। ठीक है, चल डायरेक्ट रीशफल से करते हैं, आ जाओ। 1 मिनट, डायरेक्ट रीशफल, हेल्प मी विद द फॉर्मेट। ओके, पहले 1 मिनट, 1 मिनट। इवैल्यूएशन अपन कर रहे हैं A1। चलो 10 में लेट्स रीड द क्वेश्चन। हाँ पहले 1 मिनट। हाँ, फर्स्ट 2-3 थिंग्स दैट वी नीड टू बी particulars. Project is of how many years, Baba? 5 years का लेना पड़ेगा। 4 years. So will you draw the format for 4 years or 5 years? 5 years। कर दो then 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, and tell me, should you use amount in dollar, millions? Look at the question, try to gauge. Amounts are all given in what? $1 million. Millions. You have both options. You could use dollar millions, you can use what? Dollar thousands also. I don't have a problem there. If we are doing, then we'll do amount in dollar millions. चल, सबसे पहले we do sales. Is the sales directly given? Yes, sir. Is there any chance of any selling price का inflation or anything? देखो, sales दिया हुआ है। No, sir. Is the inflation already added? या inflation added नहीं है Yes, sir. भाई? Forecast. Forecast है, यानी क्या है? Inflation already added है? Yes, sir. So sales दिया हुआ है 60, 86.4, 86.4, 77.8. वेरिएबल कॉस्ट दिया क्या? कुछ भी नहीं दिया, बट क्या कंट्रीब्यूशन दिया? डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन से चालू करो फिर। कंट्रीब्यूशन कितना दिया? 24, 42.3। नहीं दिया तो क्या कर सकते? 40.1 एंड 34.1। बट इफ यू वांट टू राइट वेरिएबल कॉस्ट, लिख सकते क्या आप? Yes, Yes, sir, माइनस करके। So I will write what? Negative में 60 minus 24 because it is an outflow. So variable cost have to be written in negative. The variable cost. कोई टेंशन नहीं। Contribution हो गया। From contribution you deduct what? Fixed cost. What are fixed cost? Tell me. Sir, 8 million। 8 million in first year. First year. और उसके That बाद means रहेगा 0 year terms है या first year terms है? first year First year And terms. inflation will apply from which year? year Second. 2। This into 1.05. Okay क्या boss? Have a look. Yes, sir। फिक्स कॉस्ट में से क्या माइनस होगा? डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे, रुको, वो भी डायरेक्ट रीशफल लिख रहा हूं। फिक्स कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे क्या रीशफल में? बोलो। Tax नहीं। देन व्हाट विल यू गेट हियर? नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स, बराबर है दिस कंट्रीब्यूशन प्लस दिस फिक्स कॉस्ट। देन फ्रॉम दिस फर्स्ट व्हाट यू विल डिडक्ट? टेल मी। सबसे पहले क्या? टैक्स। देखो टैक्स का क्या है, सब रीड करो, हेल्प मी, आपको भी आता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सी अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दे दी गई है तो माइनस टैक्स ये कर देता कॉर्पोरेशन टैक्स, करेक्ट, एट 30%, करेक्ट, एंड आई विल से ऐड टैक्स शील्ड ऑन टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन। Yes, sir. इसका हम वर्किंग कर लेंगे, वी कैन डू वर्किंग ऑन दैट, करेक्ट है। Sir, 20% हो में जाएगा। पे करना है। देन वी हैव व्हाट?
नेट 20 है ऑपरेटिंग क्या? कैश फ्लो 20 है सर। ओके 20 ले लेते हैं, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इसके बाद तो 3 चीजें होती है। व्हाट आर द 3 थिंग्स? बोलो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू, वर्किंग कैपिटल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो जो मेरे पास अवेलेबल है आई विल स्टार्ट फिलिंग दैट अप, ठीक है। टेल मी हाउ मच इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाबा? 60 मिलियन। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इधर लिख देता हूँ -60। फिर क्या है? टैक्स अलाउंस ऑफ हाउ मच? अरे वाह बढ़िया। कितना टैक्स अलाउंस है बोलो? 100% इज अवेलेबल इमीडिएटली ऑन द इन्वेस्टमेंट। किया है क्या हमने क्वेश्चन ऐसा? एंड क्या दिया है? द ईयर फॉर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैन बी अज्यूम टू बी व्हाट? अभी इसका क्या करेंगे? टेंशन है। टीएस ऑन टीएडी निकालना पड़ता क्या? बोलो। यस सर। एक वर्किंग नोट करनी पड़ती, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स है 20%। ऑन क्या करेंगे? ऑन कैश फ्लोज करना पड़ेगा, ऑन नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स। बोलो कितना है? दिस 16 और दिस इज पेएबल, तो दिस 16 इंटू 20%, बराबर है ना? सेम ईयर है या अरियर्स है? कैन यू टेल मी? सेम ईयर है सर, दिया हुआ है। सेम ईयर। Same here. बट नाउ टीएस ऑन टीएडी आई विल से वर्किंग नोट 1। करेक्ट है। आ जाओ, डू अ वर्किंग नोट हियर। आप बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। क्या वो कि 100% डेप्रिसिएशन करके पीछे अगर स्क्रैप वैल्यू दिया तो क्या करने का, राइट? मैंने तो ऐसे ही एक प्रोबेबिलिटी बोल के कराया था और आ गया एग्जाम में, लिटिल ब्रेडी में। टैक्स शील्ड ऑन टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन। सी यू सेव टाइम, कॉपी दिस। चलो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ए डब्ल्यूडीवी है क्या? कुछ नहीं, ओपनिंग बैलेंस सीधा। हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर में? टेल मी। 60 का ओपनिंग बैलेंस। हाउ मच इज डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर? बोलो। 60 पूरा। स्क्रैप वैल्यू के बाद क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं, क्लोजिंग बैलेंस 0 is what? This minus this. this will become 0. सर 60 का तो हमारा इन्वेस्टमेंट 0 ईयर में नहीं है। 0 थे। भले 0 ईयर में हो बट टैक्स टैक्स कब आता है? बोलो। फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में, राइट। डेप्रिसिएशन कब होगा? डेबिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 0 ईयर में तुरंत डेप्रिसिएशन मिलेगा, बट डेप्रिसिएशन का क्रेडिट कब मिलेगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। बराबर है क्या? देख लो, राइट। और टीएस ऑन टीएडी कितना आएगा? बोलो। दिस इंटू 20%, बराबर है। अब आएगा स्क्रैप वैल्यू का चक्कर। 5 मिलियन स्क्रैप वैल्यू जो कितनी है भाई? 5 मिलियन। यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट ईयर में? दिस माइनस दिस, नहीं सॉरी, दिस माइनस दिस, यानी ए ऊपर है, बराबर था। ओपनिंग माइनस द स्क्रैप वैल्यू -5। और इस पे कितना आएगा? टीएस ऑन टीएडी 20%। -1 का एक्स्ट्रा टैक्स पेबल आएगा क्या? बोलो। यस। यस। सर हम लोग तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से किए थे सर, लॉस एडजस्टमेंट वगैरह किए थे इसमें। अरे ये येडे ने बोला ना डायरेक्ट रिशफल करने को, इसलिए। अरे ये इसने बोला ना, रोहित ने, डायरेक्ट मेथड से। हमने कौन से मेथड से किया था मैडम? सर हमने डायरेक्ट नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, जैसे बिफोर टैक्स अभी आपने लाया वैसे ही किया था, और सिर्फ फिर उसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट किया था हमने। बराबर है। सर अरे क्योंकि मैडम वहीं ने पे इन्वेस्टमेंट आप वाले लॉस एडजस्टमेंट किया था। अरे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आराम से। किधर लॉस है क्या? लॉस है ही नहीं, कहाँ से लॉस है? प्रॉफिट है ना वो, स्क्रैप वैल्यू जो लॉस sale कब की। आएगा मैडम? बोलो, याद सर मेरे करो, पास लॉस वही कब लिखा आएगा? हुआ है, इसीलिए मैं अरे सब। लॉस कब आएगा? अरे आप चुपचाप पद्धति से सोचो कि आपने डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट के बाद माइनस किया कि नहीं किया, इतना मैं आपको पूछता हूँ। सर नहीं। क्या इधर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया? मैडम मजाक मत करो। सर मैं वही देख रही हूँ सर, पुराने वाले सोल्यूशन में ऐसा नहीं है। कैसा है तो?
सर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स आया सर, हमने डायरेक्ट ही कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इनिशियल हाँ इन्वेस्टमेंट और स्क्रैप हाँ वैल्यू करके सर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स निकाला था, फिर हाँ। टैक्स लेस इनिशियल करके। इन्वेस्टमेंट और स्क्रैप वैल्यू ऊपर लिया। हाँ, ये बस क्या, मजाक मत करो। अब ऐसा सर कैसे एक्चुअली ऊपर किया लेंगे? मेरे पास पिछली बार, तो मैं क्या करूँ? मैंने तो करवाया नहीं लिटिल बिडी लास्ट टाइम, आपने किया पीछे देख के। मैंने करवाया क्या? नहीं करवाया। आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ ना। ठीक है। चल आ जाओ। इधर लिटिल बिडी में प्रॉब्लम आएगा जब आप इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, इसलिए आ रहा हूं मैं इधर। आ जाओ। कितना भी डेप्रिसिएशन पे कितना मिलेगा सेविंग टैक्स का? 12 का, बराबर है क्या? आ जाओ। और लास्ट में कितना मिलेगा बोलो? 1। ये 1, बराबर है क्या? चौथे साल में, पांचवे में नहीं भाई, चौथे साल में। चलो, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना आएगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस, बराबर है क्या? ठीक है क्या? देख लो। स्क्रैप वैल्यू 5 मिलियन ईयर। चले आगे। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलो भाई, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10%, बराबर है ना? तो इज इक्वल टू कितना होगा? दिस सेल नेगेटिव कर देता, या ये आपको वर्किंग नोट बनाना, क्या वर्किंग नोट बनाओ। बोलो वर्किंग नोट 2, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चले। चलो, ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो? पहले सेल्स लाना पड़ेगा ऊपर से। डू वी हैव द सेल्स विद अस? 60, 86.4, 86.4, 77.8, बराबर है। आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस 0 to 10, वो भी नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, एंड में रिपेड बैक है ना? एंड में रिपेड बैक है क्या बोलो? रिलीज एट द एंड ऑफ द। हो गया। तो ये लाइन जाएंगी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। अब ये क्वेश्चन लेने का एक कारण है, एक ये क्वेश्चन लेने का एक कारण है, मैं बताता हूं। आ जाए। हो गया क्या? एवरीबॉडी विथ मी? नेट कैश फ्लो निकालो। आंसर मैच नहीं करता अपना 100%। आ जाओ। देर इज अ रीजन आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। थोड़ा इधर नजर मारो। कुछ नेट कैश फ्लो आया, आप एनपीवी निकाल सकते क्या? व्हाट इज द रेट? इज इक्वल टू एनपीवी।
11% है 11% comma first year to end of project plus this negative 66. अरे यार कितना है? चलो ना अभी डायरेक्ट रीशफल से करते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट से करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से। किससे? इनडायरेक्ट मेथड। ये ओके होगा तो इनडायरेक्ट मेथड पे जा सकता हूँ। यस सर सर 2 मिनट दो ना, एक बार देख रही हूँ ना कुछ। देखो देखो, रुको 1 मिनट, ऐसा करता Sir, हूँ। so can you show that? Can you explain that working capital investment again? That This part. one? Yes. Yeah. 10% on every increase. So it was 86.4, 86.4. So will there be any increase in sale? No. Then there is a fall. So you take back the 10%, correct? Okay. Okay. And then at the end you repaid back, correct? And this line will go into the answer. Correct, no? Yes. Yeah. There is an inherent problem with this question. There is a problem why direct reshuffled also does not work in AFM. This is what direct reshuffled, no? Cannot work in AFM. कितना 15 मिनट का क्वेश्चन था, 15 मिनट में तो क्लास में हो गया। But check the answer behind, whether the answer is matching or not matching. Tell me. Whether the answer is matching or not matching. Tell me. जानबूझ के क्वेश्चन लिया है मैडम। Whether the answer is matching or not matching. Someone go back, check whether the answer is matching or not matching. सर हम लोग तो फर्स्ट किए थे क्लास में, इसलिए तो जानबूझ के लिए है। फर्नेस्ट में लॉस नहीं था ना मैडम। एक मेथड जो करना है, दैट इज व्हाट, टेल मी, शुड बी द इनडायरेक्ट मेथड। Is the answer matching? Someone check behind. Not matching, no? हो रहा क्या मैच? बोलो। Sir, हाँ? it is given 14.9 in हाँ, kit. come here, no? Answer- We'll go back. Little ready answer. I am trying to say, why I am trying to say that only indirect method is only workable in AFM. What is the reason? I'll tell you, no? आ जाओ जरा, व्हाट इज द आंसर? फाइनल आंसर कितना है? 14.9. 14.9, राइट? चल, नाउ सर, that means can we not do direct reshuffled at all? If there are losses, आ जाओ लिख लो somewhere, write down all 3 different formats. If there is no loss,
if there is no loss in any year, that is PBIT is always positive. Is always positive. PBIT is always positive. Use any method. If there is loss in any year, PBIT is negative. In some years. Use indirect method. Use what method? Indirect. Indirect method. Eventually, आपको honest to God, always you have to use what? Indirect method. Indirect method. First year का PBIT निकालो रे. First year PBIT. First year PBIT of this question. Can we do first year PBIT of this question? देखो 16 ये fixed. रुको, I will create a copy. I will create a copy. सर depreciation minus होगा. With वो भी 100% होगा. Okay. चलो आ जाओ. तो हम depreciation माइनस करते हैं यहाँ पे. If हाँ we सर. deduct depreciation, how much is the depreciation in first year? नीचे निकाला हुआ है ना. Have you calculated 100%. depreciation here? How much? 60. 60. So what will happen? Depreciation minus 60. बराबर है क्या? Yes. So sir. now once you have deducted depreciation, will this be net operating cash flow or net operating profit? बोलो. Net operating profit. Net operating. Net operating profit. How much is net operating profit? बोलो. Loss है क्या? Loss. Yes, sir. Yes, sir. बोलो. If there is a loss, what to do? Will you pay tax if there is a loss? Tax No, sir. shield. Will there be tax shield when there is a loss? That is also a question. So there will be a tax shield, but not in this case because we are using. Ab go to the question. What does the question say? There are two situations here. There are what? Two situations. When there is a loss, the question will tell you what to do. What is it telling? Read little Bredica, what they have told. इधर क्या होता है? On profit. Okay, carry Must be carried forward. and Carry offset forward. against Tax profit. losses must be carried forward and offset against what? Profits. Profits Right. in the next. For this, right? अब आना, अब next heading लिखना. लिखो. Tax adjustment. Loss situation plus indirect method. मैडम आपके इसमें लफड़ा हुआ था ना लास्ट टाइम, बराबर है ना? वही सही कर रहे हैं अभी. लिखो. Note. Always use indirect method. Always use indirect method. बट एक मिनट रुको 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 रुको. अगर मैं डेप्रिसिएशन minus 60 यहां कर रहा तो मेरे को फोर्थ ईयर में भी कुछ करना पड़ेगा क्या? शांति से. फोर्थ ईयर में कुछ करना पड़ेगा क्या? इधर देखो डेप्रिसिएशन नेगेटिव में लिखा मैंने इधर,
तो फोर्थ ईयर में क्या करना पड़ेगा, स्क्रैप वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में लिखनी पड़ती क्या? यस तो वो तो नीचे आ जाएंगे ना। किधर? है नीचे आ वही जाएंगे तो। बोलता तू, इधर। हाँ, नहीं बट इस पे टैक्स नहीं पे होगा, डायरेक्ट नहीं नहीं, ये बराबर। प्रॉफिट या लॉस है ना राजा। हाँ, प्रॉफिट है। प्रॉफिट या लॉस पे देख, ये वाला इधर किया था हमने, ये देखो हाँ, आपने बोला था। इधर इधर एक ही सिचुएशन है, लास्ट वाली सिचुएशन ली होंगी मैंने, जनरली मैं लास्ट वाली सिचुएशन लेता। क्या है, डेप्रिसिएशन 500,000 और ये -50,000, मतलब डेप्रिसिएशन अगर नेगेटिव में लिख रहा तो ये कैसे लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव में। यानी डेप्रिसिएशन में 5 के ऊपर टैक्स पे होगा क्या? यस। समझ में आ रहा है क्या वेयर आई एम गोइंग विद दिस? या आप बैटरी डाउन है? बोलो बैक। बोलो बोलो, यस सर। लिखो। चलो, ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट मेथड, लिखो 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 लिखो, एंड कैलकुलेट पीबीआईटी if all years PBIT positive, no tension. But अगर if in some year there is loss, तो क्या करोगे? There are two options, either carry forward the loss, or use existing loss, or use new business loss against existing profits. ये खत्म कर दूं या नेक्स्ट वीक लूं? बोलो। कर सकते हैं सर अभी। बैटरी डाउन हो गई है, सोचना पड़ेगा वो। ठीक है ना, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नहीं है, ठीक है, ले लो फिर। इधर नीचे ये भी लिखना है, इधर स्टार करके, ऑलवेज मेक अ वर्किंग नोट फॉर टैक्स व्हेन देयर आर लॉसेस। ठीक है, चलो आ जाओ। अब वर्किंग नोट कैसी बनानी पड़ती, ये क्वेश्चन को भी साइड में रखते हैं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। मैं लॉस वाली सिचुएशन कवर करना चाहता हूं, आ जाओ। मैं यही क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, यही सिचुएशन है, बराबर है। आ जाओ, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव है, राइट। एग्जाम्पल, लॉस कैरिड फॉरवर्ड, इधर नीचे लिखो टैक्स रेट इज इक्वल टू 30%, कैलकुलेट द टैक्स पेमेंट इफ ए losses will be carried forward, b will be used, existing losses will be used, और न्यू प्रोजेक्ट लॉसेज, ऐसा लिखो। चले क्या? बोलो। चल, अब मैं लिखता यहाँ पे वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट ही लिख रहा मैं। सबसे पहले मैं लॉसेस या क्या जो पीबीआईटी जो भी है वो कॉपी करूंगा, या क्या जो इधर से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलना आपको, वो कॉपी कर रहा मैं ऊपर से।
ठीक है, ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, राइट। अब मेरे को लॉस, अब देखो लॉस दो तरीके से हैंडल होता, एक तो कैरी फॉरवर्ड होता। अभी देखो फर्स्ट ईयर में लॉस कितना दिखा रहा, 44 का, बराबर है ना। हाउ मच लॉस इज शोड, 44। दिस लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड, क्योंकि क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यस। ये मैंने कैरी फॉरवर्ड किया लॉस, क्या मैं यहाँ पे उस लॉस को यूज कर सकता हूँ, बोलो। यस सर, तो एग्जॉस्ट मैंने यूज किया यहाँ पे 33.9, बचा कितना अभी, बचा कितना, कितना बचा, वो और कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ। So my loss has been carried forward and used. So now if I say how much is my taxable profit, how much is the taxable profit? 0 सेकंड वाले में भी 0, हाँ 0 फर्स्ट ईयर में 0, सेकेंड ईयर में Second 0. में Do I need zero. to pay tax if my taxable profit is 0? See, my income tax department is saying that cash flow भूल जाओ, direct method reshuffle भूल जाओ, only follow indirect method when you are having losses. Okay, right? So this 44 losses is carried forward. You do not need to, if you have a loss, you can, in the year of loss, do you need to pay tax? No. Not at all. Tax at 30%. In this year on the taxable profit, 0% is 30%, but 0 profits है, so not payable. Here also 0 is the profit because you used 44 में से 33.9 year, 10.1 you used here, 21.18 इस पे पे करो, 6.354 in negative. And in the last year also, is there any thing that is there? No loss is there. The full profits on this you will pay tax of how much? -75 whatever, -7.4517. करेक्ट है। यही वर्किंग नोट भी उधर भी जाएगी, किधर, एंड दिस लाइन टैक्स एट 30% विल गो इन द मेन क्वेश्चन। एक अश्विनी मैडम बराबर है क्या कैलकुलेशन? So we can't use a direct method because of tax implication, ना? हाँ, बिकॉज ऑफ लॉस। देखो टैक्स कैश फ्लो में ना वो ऐसे लॉसेस आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये इधर यूज ही नहीं कर सकता, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि अपना लॉस ही नहीं आ रहा है पहले तो हम निकाल रहे हाँ हैं। अपना लॉस ही नहीं आ रहा, इस वजह से क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है क्या, नहीं। इसीलिए डायरेक्ट रीशफल्ड, जब भी आपका लॉस होगा कोई भी साल में, क्या डायरेक्ट रीशफल्ड मेथड चलेगी या नहीं चलेगी, बोलो। नॉट No, sir. इफेक्टिव। तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, लफड़ा, बराबर है क्या। तो इधर आ जाओ ना एक मिनट, क्या हमने टैक्स कैलकुलेशन इधर नीचे भी कर सकते हैं? देखो यही वाला टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स कितना 20% था ना, चेंज कर लेते, यही यूज कर लेंगे वहां पे, वो करके आंसर निकाला तो इजीली आंसर निकलता, क्या निकलता, यही वर्किंग नोट वहां कॉपी कर लेते क्या नीचे। आपने गड़बड़ किया है क्या गड़बड़ क्या भाई, 200% लिया है नहीं रे, हाँ 200 ले अब ओके क्या, यस सर। देखो वर्किंग नोट कॉपी कर लेते, ये रहा, इधर नीचे वर्किंग नोट डाल देता हूँ। Correct. Have a look. I've used the losses. Now these are the tax or profits pay tax that you need to pay. Then now come to it. आ जाओ. You have now what? Net operating profit before tax. उससे क्या निकलेगा? ये क्या टैक्स माइनस करने के बाद? आफ्टर टैक्स। After tax. That means this plus this. Okay क्या? Now to go from net operating profit after tax to go to net operating cash flow after tax, what do you do? बोलो. Add back depreciation. Add back depreciation.
डू यू हैव द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऊपर लिखा हुआ? यस यस बोलो। ये क्या अब एड बैक करना तो नेगेटिव लिखो या पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव बट ये लास्ट वाला जो पॉजिटिव लिखा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो आ गए आप किस पे? दिस विल गिव यू व्हाट नाउ? नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो सॉरी बिफोर या आफ्टर टैक्स? After सब tax. कुछ हो गया आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, करेक्ट? सर मतलब बेसिकली आप बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन के पहले अगर लॉस आ गया है डायरेक्ट मेथड में, डेप्रिसिएशन के पहले का लॉस कभी नहीं आता, डेप्रिसिएशन के बाद लॉस आता राजा। अरे सर तो आप डायरेक्ट मेथड में तो ऐसे ही कर रहे हैं ना। क्या? आप ऐसा बोल रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड में अगर लॉस आया तो ही ये मेथड पे जाने का ना। अरे डायरेक्ट मेथड में लॉस आएगा ही नहीं राजा। लॉस आया किधर? नहीं आया नहीं है। प्रॉफिट या लॉस की बात होती क्या डायरेक्ट मेथड में? नहीं या कैश फ्लो की बात होती? कैश फ्लो। कैश फ्लो, काम ही खत्म। सर हमने इसीलिए डेप्रिसिएशन का 5 रुपीज इंक्लूड किया है क्या? किया ना, ये क्या दोनों बाजू किया? ये क्या 24 में नहीं, 24 में इधर? सर आई थिंक इंक्लूडेड नहीं है। किसमें 24 मेरा में? ये इधर? 29 आ रहा है। हाँ हाँ ओके, ठीक है क्या? हाँ अब चलो, बाकी सब तो ओके है। कितना आ रहा है एनपीवी देखो जरा, थोड़ा सा इधर चेंज करना पड़ता। यहां से लेके यहां तक का सम आ रहा है क्या भाई? उनका आंसर क्या है? 14.8 या कुछ तो भी है ना, ऐसा ही सेम आंसर है क्या अपना? 14.9 हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस तो विल कम। आर द कैश फ्लो सेम? जस्ट चेक वंस। कैश फ्लोज उनका और हमारे सेम है क्या? एक बार देख लो। नेट कैश फ्लोज किधर है भाई? नेट कैश फ्लोज हाँ ये रहे 66। एक मिनट भाई, 12.1 ये सही निकाला है क्या? देख लो एक बार। 2.64 वगैरह नहीं, ये रहा 13.4 बराबर है ना? 13.4, 33.9, 27.9, 31.7। So now tell me again, I'm asking you finally, if you have profits, पीबीआईटी है, अभी पीबीआईटी चेक कर रहे हैं तो आपको कौन से मेथड से पीबीआईटी चेक करना पड़ेगा? पीबीआईटी डायरेक्ट मेथड में कभी निकालते क्या? नो सर। यानी हर बार कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? इंटरेक्ट। तो ओके क्या? कभी फाइनली फाइनल क्या करेंगे बोलो? ऑलवेज यूज विच मेथड? इंटरेक्ट। इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का शर्वनी, कुछ यूज ही नहीं है। डायरेक्ट का कुछ यूज ही नहीं है, बट अगर वो समझाता नहीं तो इनडायरेक्ट समझता क्या? नहीं नहीं वो तो नहीं समझ। क्या मतलब लगता है पूरा शर्वनी? अभी एएफएम में इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है कुछ भी अभी नहीं। अगर आप ये फॉर्मेट ही लर्न कर लो तो आंसर इजीली आ सकता है क्या? अब देखो हाँ एक सर। मिनट, फर्नहर्स्ट कंपनी आते क्या? होमवर्क है आज का। फर्नहर्स्ट, फर्नहर्स्ट कंपनी देखो जरा। फर्नहर्स्ट कंपनी आप इनडायरेक्ट से सॉल्व करो या इनडायरेक्ट से क्या करो? फर्नहर्स्ट कंपनी आज आपका होमवर्क है। थोड़ा आते क्या? एक मिनट, ये देखो जरा, इसका मेरे को बताओ, ये जमेगा क्या आपको? पहला पैराग्राफ रीड करो। सर सेल्स, उसको मैक्सिमाइज कर दो ना। सेल्स रीड करने को या इंटरप्रेट करने को जमेंगे क्या? यस हो सर। जाएगा? बहुत यस। इजी है ये क्वेश्चन, ट्राई करो। बट अब कौन से मेथड से करोगे बताओ मेरे को? इनडायरेक्ट। इंटरेक्ट। सब लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? Indirect. इनडायरेक्ट से ही करना, ठीक है? ओके, तो आज फर्नहर्स्ट कंपनी क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, ठीक है? और इस बार एनपीवी का ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। इस बार क्वेश्चन एनपीवी का ही आया था एग्जाम में, सच में बोल रहा है, एनपीवी आया था, ऐसा एनपीवी क्वेश्चन आया था। सर बीपीपी की कैप्लन है वो। कैप्लन है, कैप्लन है ठीक। राइट। फर्नहर्स्ट कंपनी तो इस पे भी है, क्या बोलते हैं,
स्टडी अप पे भी क्वेश्चन है. I'll give the soft copy of the question if you want. ठीक है I'll give the books also to you. तो Wednesday, Thursday, Friday, correct? 10 नहीं तो 10:15 जो भी है, 9:45 नहीं तो 10. आपको टाइम मैं कल या परसों कंफर्म कर देता हूँ, मंडे को या ट्यूसडे को कंफर्म. सर एक पोल डाल दो ना, बेटर रहेगा. ठीक है ना, पोल डाल देंगे. हाँ, क्या मतलब पोल डालना है? अभी रात को ही है ना क्लास, दूसरा क्या पोल डालना 9:30 या 10 बहुत ज्यादा लेट हो जाता है सर, 10:30 के आगे. क्यों? अरे सबको वही टाइम जम रहा है, 9:45 to 11. हाँ वो सो ठीक है, जाने वो का. चलेगा सर. हाँ, सो जाने का फिर 11 बजे. ठीक है, चलो देन एवरीबडी, आई विल शेयर द एक्सेल शीट विथ यू. हाँ सर, एक्सेल कर दूंगा. हमें आर्टिकल्स भी पढ़ने होंगे क्या? आर्टिकल्स मैंने इंक्लूड कर लिए सारे सर. ठीक है सर. कोई अलग से आपको पढ़ने का जरूरत नहीं. हाँ, यूजिंग न्यू बिजनेस लॉस्ट अगेंस्ट, वो वाला पार्ट बचा है, वो अगली बार कर लेंगे. ठीक है, न्यू बिजनेस के लॉसेस यूज अगेंस्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस, यस सर, वी विल डू दैट नेक्स्ट वीक. ठीक है. यस अरविंद, टेल मी व्हाट हैपेंड. Nothing, sir. नथिंग, ऑल ओके. हाँ, रुको, हाँ मैं एक मिनट एक्सेल भेज ही देता हूँ आपके ग्रुप में, ताकि काम हो जाए, तो कुछ रहे नहीं मेरे साइड से, नहीं तो भूल गया तो भूल जाऊंगा. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एफएम रिवीजन ना, सेंसिटिविटी एनालिसिस, राइट. फिर क्या है, ऑल दोस थिंग्स. सर आप मल्टी प्रैक्टिस पीरियड कर रहे कैपिटल, कि कंसेप्ट से? नहीं कॉन्सेप्ट्स, मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग, ओके. सेंसिटिविटी एनालिसिस, आरओसी. प्रॉब्ली अपना सेंसिटिविटी एनालिसिस होगा उस टाइम पे, और आई थिंक वी मे बी एबल टू गो इनटू मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग. ये रहा आपका एक्सेल शीट, एक्सेल शीट, एक्सेल शीट, एक्सेल शीट. एक्सेल शीट भेज दिया, जस्ट चेक. देख लो आ गया क्या? यस हाँ जी सर. ठीक है. कैन आई wrap it up? We will now meet Wednesday. Till then, bye bye. Take care of your health. Enjoy Yes, sir. whatever is left of your Sunday. Bye bye. सर थैंक यू सर. पढ़ना Thank you, पड़ेगा sir. सर. Thank you, sir. Welcome. Bye. Bye.